जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज पाठ कर रहे हैं हम श्रीमद् भागवतम से। और आज तीसरा स्कंद है, 21वां अध्याय है। और अध्याय चल रहा है कॉन्वर्सेशन बिटवीन मनु एंड कर्दम ऋषि, कर्दम मुनि। और श्लोक संख्या 11 और 12 इन पर चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो ये 11 श्लोक इस प्रकार से हैं। विन्यस्त्याचरणां भोजम अंश देशे गुरुमत्तमः दृष्ट्वा खे वशितं वक्षः श्रियं कौस्तुम कंधरम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अ गोल्डन स्ट्रीक ऑन हिज चेस्ट, the famous Kaustuv gem suspended from his neck. He stood in the air with his lotus feet placed on the shoulders of गरुड़ा। तो ये भगवान के सुंदर रूप का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, बड़ा सुंदर वर्णन है। तो अब इसका जो तात्पर्य है इस प्रकार से दिया है श्री प्रभुपाद जी ने। The description in verse 9-11 of the Lord in his transcendental eternal form are understood to be descriptions from the authoritative Vedic version. These descriptions are certainly not the imagination of Kardamuni. The decorations of the Lord are beyond material conception, as admitted even by impersonalists like Shankaracharya. जैसे शंकराचार्य बोलते हैं नारायण परो व्यक्ता। So Narayana, the supreme personality of Godhead, has nothing to do with the material creation. The varieties of transcendental Lord, his body, his form, his dress, his instruction, his words are not manufactured by the material energy, but are all confirmed in the Vedic literature. By performance of yoga, Karda Muni actually saw the Supreme Lord as he is. There was no point in seeing the imagined form of God after practicing yoga for 10,000 years. The perfection of yoga, therefore, does not terminate in voidness or impersonalism. On the contrary, the perfection of yoga is attained when one actually sees the personality of Godhead in his eternal form. The process of Krishna consciousness is to deliver the form of Krishna directly. The form of Krishna is described in authoritative Vedic literature, Brahma Samhita. His abode is made of Chintamani stone, and the Lord plays there as cowherd boy and is served by many thousands of gopis. The descriptions are authoritative, and a Krishna conscious person takes them directly, acts on them, preaches them, and practices devotional service as enjoined in the authoritative scriptures. Okay, अगला जो श्लोक है इस प्रकार से है। जातो हर्ष पतन मूर्धना क्षितो लब्धा मनोरथा गिर्भिस्त्व अभ्यघ्नात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। When Karda Muni actually realized the Supreme Personality of Godhead in person, he was greatly satisfied because his transcendental desire was fulfilled. He fell on the ground with his head bowed to offer obeisances unto the lotus feet of the Lord. His heart, naturally full of love of God, with folded hands, he satisfied the Lord with prayers. ओके, तात्पर्य अभी थोड़ा लंबा है। ठीक है जी। तो फिर से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। The realization of the personal form of God is the highest perfectional stage of yoga. In the sixth chapter of Bhagavad Gita, where yoga practice is described, this realization of the personal form of the Lord is called the perfection of yoga. After practicing the sitting postures and other regulative principles of the system, one finally reaches the stage of samadhi, absorption in the supreme. In the samadhi stage, one can see the supreme personality of Godhead in his partial form as Paramatma, or as he is. Samadhi is described in authoritative yoga scriptures such as Patanjali Sutras to be a transcendental pleasure. The yoga system described in the books of Patanjali is authoritative, and the modern so-called yogis who have manufactured their own ways, not consulting the authorities, are simply ludicrous. The Patanjali yoga system is called Ashtanga Yoga. Sometimes impersonalists pollute the Patanjali yoga system because they are monist.
Patanjali describes the soul is transcendently pleased when he meets a super soul as he sees him. If the existence of super soul and the individual is admitted, then the impersonalist theory of the monism is nullified. Therefore, some impersonalists are void philosophers, twist the Patanjali system in their own way and pollute the whole yoga process. According to Patanjali, when one becomes free from all material desires, he attains his real transcendental situation and realization that the stage uh, and realization of that stage is called spiritual power. In material activities, a person engaged in modes of material nature are to be religious, this is dharma, arth, kam, moksha, basically, to be economically enriched, to be able to gratify the senses, and last become one with the supreme. So according to the monist, the highest stage called Kaivalya. But actually, the stage of realization of the personality of Godhead is Kaivalya. The oneness of the understanding that the Supreme Lord is fully spiritual, and that in full spiritual realization, one can understand that what he is. The Supreme Personality of Godhead is called Kaivalya, or in language of Patanjali, realization of supreme power. His proposal is that when one is freed from the material desires and fixed in the spiritual realization of the self and the super soul, that is called Chit Shakti. In full spiritual realization, there is a perception of spiritual happiness, and that happiness is described in the Bhagavad Gita as a supreme happiness, which is beyond the material senses. Trance is described to be of two kinds: sampragyat and asampragyat, or mental speculation and self realization. In samadhi or asampragyat, one can realize by his spiritual senses the spiritual form of the Lord. This is ultimate goal of spiritual realization. According to Patanjali, when one is fixed in the constant realization of the supreme form of the Lord, one has attained the perfectional stage as attained in by Kardamuni. Unless one attains the stage of perfection beyond the perfection of the preliminaries of the yoga system, there is no ultimate realization. There are eight perfections in the Ashtanga yoga system. One who has attained them can become lighter than the lightest and then greater than the greatest, and he can achieve whatever he likes. But even achieving such material success in yoga is not the perfection of the ultimate goal. The ultimate goal is described here. Kardamuni saw the Supreme Personality of Godhead in his eternal form. Devotional service begins with the relationship of the individual soul and the Supreme Soul, or Krishna and Krishna's devotees. And when one attains it, there is no question of falling down. If through the yoga system one attains, if one wants to attain the stage of seeing the Supreme Personality of Godhead face to face, but is attracted instead of attainment of the supreme of some material power, then he is detoured from proceeding further. Material enjoyment, as encouraged by the bogus yogis, has nothing to do with the transcendental realization of the spiritual happiness. Real devotees of Bhakti Yoga accept only the material necessities of life, absolutely needed to maintain the body and the soul together. They refrain completely from all exaggerated material sense gratification. They are prepared to undergo all kinds of tribulations, provided they can make progress in the realization of the personality of Godhead. Okay, so this was really beautiful. Long purport, but wow, purport. Amazing purport. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव वैष्णव की जय हो। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रहा है किस प्रकार से जब भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो भगवान के वक्षस्थल पे जो है देयर इज अ गोल्डन लाइन। या तो गोल्डन लाइन है विच रिप्रेजेंट्स बेसिकली लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी मैया की बड़ी इच्छा है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। जिस तरह से गोपियों को प्राप्त होता है, गोपियां जो है भगवान का आलिंगन प्राप्त करती हैं, इस प्रकार से लक्ष्मी जी की भी बड़ी इच्छा थी। तो फिर लक्ष्मी जी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ, कहते हैं ओके जी एंट्रेंस एग्जाम दे दो इफ यू वांट टू बिकम गोपी ऑफ कृष्णा। कहते उपले उठा लोगी, उपले बना लेती हो। लक्ष्मी ने कहा उपले, अदा पनघट से मटकी ले आओगे सर पे डाल करके। हैं, रात को 12 बजे जब कृष्ण वंशी हो जाएंगे तो पहुंच जाओगे राजस्थली में ना टाइम से। ये क्या, अरे अब हालांकि लक्ष्मी जी भैया वैसे तो देखो सिद्ध है नो डाउट, लेकिन उनका जो भाव है वो ऐश्वर्य का भाव है। सो दैट्स व्हाई ऑल्दो शी कुड नॉट बी पार्टिसिपेट इन द रासलीला ऑफ कृष्णा, बट शी इज देयर एज अ गोल्डन लाइन ऑन द चेस्ट ऑफ कृष्णा। तो ऐसे वक्षस्थल पे गोल्डन लाइन के रूप में। और साथ ही बताया जा रहा है कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि भी जो है बहुत ही रोचक है उनका होना। एक्चुअली भगवान के धाम में ऐसे कि ना वैकुंठों में अगर हम देखें, वैकुंठों में सारूप्य मुक्ति मिलती है, यानी कि जितने भक्त हैं, भक्त भी चतुर्भुज होते हैं। कहते लो जी नारायण भी चतुर्भुज, जीव भी चतुर्भुज। तो फिर भगवान तो पता नहीं लगेगा भैया इसमें भगवान कहाँ है जीव कहाँ है, बिकॉज तो दोनों के चार भुजाएं हैं। बट देर इज वन डिफरेंशिएशन, और वो है कि कौस्तुभ मणि इज देयर विद ओनली नारायण। यस, तो कृष्ण के नारायण के यहाँ पर गले में देर इज अ लॉकेट, और ये ब्लू कलर का लोटस शेप लॉकेट है। ऐसे नहीं जस्ट जस्ट सिंपल लॉकेट, ये सर्कल वाला स्क्वायर वाला ना, इट्स अ ब्लू कलर लोटस वाला लॉकेट है। और इतना तेजस्वी है ये, इतना ओजस्वी है ये रॉकेट, ओ माय गॉड। इससे बहुत तेज निकलता है। इनफैक्ट जब भगवान की जब गोवर्धन लीला हुई, तो गोवर्धन लीला में हुआ क्या, भगवान ने अब गोवर्धन उठाया हुआ है या, अब गोवर्धन उठाया, अब गोवर्धन के नीचे सूरज की रोशनी तो आ नहीं रही, तो वहां तो अंधकार होगा बिकॉज देर इज नथिंग वहां तो। सूरज तो ऊपर होना चाहिए। पर इतने जोर से झमाझम बारिश हुई थी कि सूरज भी था वो भी सुप्त पड़ गया था, इतना मतलब प्रलयंकारी अटैक था। अरे अब ऐसा अटैक हो तो ऊपर जो सूरज है वो तो गया छुप, तो फिर नीचे क्या होगा, नीचे फिर अंधेरा अंधेरा ही होगा फिर। ना जी ना। भगवान श्री कृष्ण ऐसे गिरिराज जी को ऐसे लेके खड़े हुए हैं, जो गिरिराज जी को ऐसे लेके खड़े हुए हैं, तो फिर उनके तो गले में जो उनकी कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि से इतना प्रकाश निकल रहा था कि मानो यहाँ सवेरा हो रखा था, यहाँ रोशनी रोशनी थी। तो ऐसे नहीं यहाँ पर अंधेरा है, नीचे केचुए हैं, सांप है, ना 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 ना। सो कृष्णा की यहाँ से जो कौस्तुभ मणि है वो उससे बहुत प्रकाश निकल रहा था। प्रकाश तो निकल रहा था, साथ साथ में कौस्तुभमणि का ऐसा प्रताप था भगवान की लीला में, ऐसा प्रकाश कि सारे भक्त जो चारों ओर थे भगवान श्री कृष्ण के, वो कृष्ण को भी देख पा रहे थे, और साथ साथ में जो उनके गले में है कौस्तुभमणि है तो भी देख पा रहे थे। मतलब जो आगे का डिवोटी, यहाँ का डिवोटी, वहां का डिवोटी, यहाँ का डिवोटी, सब जगह का जो डिवोटी है, एवरीवेयर दे कैन सी कृष्णा विद कौस्तुभमणि। ऐसा था, इट वॉज वेरी वेरी यूनिक। अब हुआ क्या, वैसे समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन से कौस्तुभमणि निकला था। सो देयर वाज अ डिस्कशन, कौन लेगा भला, देवता लेंगे इसको या राक्षस लेंगे, कौन लेगा, असुर लेंगे, कौन लेगा भला इसको। भगवान ने कहा नन ऑफ यू, ये मेरा है वास्तव में। तो भगवान अजीत यानी भगवान विष्णु ने क्या किया, उस मणि को लिया, भगवान ने धारण किया। तो इसके पीछे धारण करने का ही कारण ये भी था बिकॉज जो कौस्तुभ मणि है इट इज कंसिडर टू बी ओरिजिन ऑफ द जीव तत्व। जैसे हम सब जीव है राइट, तो जीव तत्व भला कहाँ रिसाइड करता है, सो जीव तत्व रिसाइड्स फ्रॉम द कौस्तुभ मणि, इट एमिनेट्स, ऐसे करके प्रकट होता है। तो इसीलिए दैट मीन्स कॉस्ट्यूम मणि इज वेरी वेरी स्पेशल। तो वैसे कॉस्ट्यूम मणि जो है अब तो सबने एक ही देखा है राइट, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक कॉस्ट्यूम मणि आया, भगवान ने पहन लिया वो। लेकिन ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई, सो ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर जितने भी भगवान के सखा हैं, जितने भी जितने भी गाय हैं, बछड़े हैं, उनके ऊपर भगवान ने अपना विस्तार किया। तो भगवान ने जब विस्तार किया अपना, तो फिर जितने भी वहां पर विष्णु रूप थे उन सबके गले में कौस्तुभ मणि था। नो दिस वॉज वेरी बिविल्डरिंग फॉर ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई ये मैंने क्या देख लिया, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कौस्तुभ मणि देखा है, आज तक कभी मल्टीपल कौस्तुभ मणि देखी नहीं थे।
अरे इतने सारे कॉस्ट्यूम मणि, पहले इतने सारे, पहली बार इतने सारे कृष्ण, और इतने सारे कृष्ण होने के साथ साथ इतने सारे जो कृष्ण हैं उनके सबके गले में कौस्तुभ मणि। अरे ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए, जिनका शरीर पूरा बुद्धि तत्व का बना हुआ है, वो तक अमृतांजन बाम लगा रहे थे हमने चारों सरों के ऊपर। यहाँ भी लगाओ, पीछे भी लगाओ, पीछे वाले सर भी लगाओ। अरे 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 अरे, अरे ऐसा कैसे अरे। सो इसलिए कॉस्ट्यूम मणि सो मनी, या सो कृष्ण जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम मणि, कृष्ण कैन मेक एज मेनी कॉस्ट्यूम मणीज एज पॉसिबल। बट यस, इट इज द ओरिजिन ऑफ जीव तत्व, ऐसा। और भगवान ने जब ये लीला की थी, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने जो है ग्वाल बाल चुरा ली, भगवान को पता नहीं लगा, अरे ग्वाल बाल चोरी हो गए, मेरे को तो पता नहीं लगा। ऐसा नहीं था। भगवान को पता ब्रह्मा जी अभी डाउट में आ रखे हैं, अभी मेरी परीक्षा भी लेंगे ये। मैंने कोई बात नहीं। तो भगवान ने क्या किया, अपने ग्वाल बाल पहले छुपा दिए थे भगवान ने। भगवान ने ग्वाल बाल पहले छुपा दिए, पायरेटेड कॉपी लेके गए थे ब्रह्मा जी। तो यानी दैट मीन्स देयर वर थ्री सेट्स ऑफ ग्वाल बाल एंड द काउज। एक जो ओरिजिनल वाले हैं भगवान ने छुपा दिए, दूसरे जो भगवान का खुद विष्णु रूप है, जिनकी जिनके सबके गले में कौसुम मणि है, दैट वाज सेकंड। एंड थर्ड जो नकली वाले थे, वो ब्रह्मा जी ले गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये क्या रे। तो पता लग गया भाई और कोई नहीं, इतने सारे कौसुम मणि के दर्शन कराने वाले, दैट्स माय लॉर्ड कृष्णा। तो तब उनको पता लगा, ओ वाओ। तो इसलिए कौसुम मणि जो है भगवान जितने प्रकट करना चाहे कर सकते हैं। साथ ही कौसुम मणि आता है व्हेन इट कम्स टू नाग पत्नी। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही दिव्य नृत्य किया था, किसके फन के ऊपर, कालिया के फन के ऊपर। बिकॉज कृष्णा वांटेड टू हैव सम फन। भगवान ने कहा ओके ठीक है, आई ऑल्सो वांट टू हैव सम फन, कालिया यू ऑल्सो हैव गॉट सम फन, सो आई हैव माई फन डांसिंग ऑन योर फन। तो भगवान ने नृत्य डांस किया, डांस कर करके, और उसका मुंह से उल्टियां निकली, डिटॉक्स हो गया वो। अक्सर लोग जाते हैं ना, पतंजलि जाते हैं, वहां पर उनको उल्टियां कराई जाती हैं, कहते हैं उल्टियां करो, आपके अंदर बहुत गैस और वगैरह भरी हुई है, ये टॉक्सिन वगैरह है, पराठे खूब खाए हैं, पचे कुछ नहीं है वो, अंदर ही घूम रहे हैं वो। तो फिर करके निकाला जाता है। तो अंदर टॉक्सिन से उनका निकलना जरूरी है, तो फिर आप अच्छे स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह से डिटॉक्स प्रोग्राम किया गया था पहला बाई लॉर्ड श्री कृष्ण। सो फर्स्ट डिटॉक्स प्रोग्राम, अगर आपसे पूछा जाए कौन बनेगा करोड़पति में, अगला सवाल, पहला डिटॉक्स प्रोग्राम किसने किया था? सो वेरी सिंपल, कृष्णा। यस। अब डिटॉक्स हो गए जी कालिया जी, कालिया साहब डिटॉक्स हो गए। अब नाग पत्नियां बड़ी खुश निकल, चलो जी हमारा पति फाइनली भक्त बन गया। क्योंकि हमने सोचा हुआ था या तो ये भक्त बन जाए, या फिर हम विधवा हो जाए, यानी तू मर जाए। बहुत तंग करता है हमको, पता है, भक्ति नहीं करने देता। जब हम मंदिर जा रहे होते हैं इस्कॉन टेम्पल, तो हमें रोक लेते हैं, कहाँ जा रही है तू, घर कौन संभालेगा, तेरा बाप। या तो ये मर जाए, विधवा हो जाए हम, या फिर ये भक्त बन जाए। अब जो देखा भाई डिटॉक्स हो गया, कालिया भी भक्त बन गया, वेरी गुड। अब भला क्या दे भगवान को एज अ मैटर ऑफ थैंक यू, भला क्या दे भगवान को? तो उस वक्त जो नाग पत्नियां जो थी वो सोच रही क्या दे भगवान को, भगवान ने देखा कि ना बड़ी कंफ्यूज हो रखी है। भगवान ने क्या, अपना कॉस्ट्यूम मणि लेकर के उनके खजाने में डाल दिया। तो ये जो ढूंढने के लिए गए खजाने में कोई ढंग का मणि है, कॉस्ट्यूम मणि देखा, कहता अरे कितना सुंदर मणि है, कहते ये कृष्ण को दे देते हैं। तो उन्होंने फिर वहां से वो कॉस्ट्यूम मणि उठाया, एंड देन दे गिव बैक टू कृष्णा। उनको लगा उन्होंने कोई उपहार दिया कृष्ण को, ये नहीं पता कृष्ण ने ही सप्लाई किया उनको, और फिर उन्होंने उसी कौसुम मणि को भगवान को दे दिया, ऐसा। तो इसलिए कौसुम मणि वहां पर भी आता है इस तरह से। साथ ही कौसुम मणि का बारे में चर्चा आती है पौंड्रक को लेकर के। पौंड्रक ने भगवान को एकदम कॉपी पेस्ट करना चाहा, बिकॉज ही इज नकली वासुदेव, भगवान से ईर्ष्या करता है वो। तो कहते हैं यार क्या करूं, मेरे चार हाथ तो है नहीं यार। तो गया वो चावड़ी बाजार गया, कहता है दो हाथ बना दो मेरे को, जो पेचकस से यहाँ टाइट हो सके। तो बना दिए, दो हाथ बना दिए उसने पेचकस से, वो तो बांध दिए उसने। चलो ठीक है, दो हाथ मेरे भी, चार हाथ हो गए, दो ये हाथ, दो ये वाले हाथ मेरे, चलो मेरे भी हो गए, चार हाथ हो गया। कॉस्ट्यूम बनेगा क्या करूं यार, कॉस्ट्यूम मणि है ही नहीं कुछ। तो चोर बाजार गया, वहां से बहुत घटिया क्वालिटी का कॉस्ट्यूम मणि लेकर के आया था। तो उसमें से कोई प्रकाश ही नहीं निकल रहा था, देयर वाज नो इफल्जेंस एट ऑल। तो भगवान ने इसको बोला, मैंने, भगवान ने बोला ये तू कहां से ये लेकर के आए, है ये असली है, तू नकली है, मैं असली हूं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा तो भगवान ने कहा आपने कॉस्ट्यूम मणि देख, तेरा कॉस्ट्यूम मणि तो बड़ा बुझा बुझा सा है, कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारा असली कॉस्ट्यूम मणि है। ये सुदर्शन चक्र देख रहा है ना, छोड़ दूंगा ना, बस तो फिर तू गया। इसलिए कृष्णा, छोड़ दे सब जो तूने रखा है रे, शंकर चक्र गदा पद्म वगैरह, त्याग दे इसको। भगवान ने कहा ओके ठीक है, मैं त्यागता हूँ। ये ले तेरे को त्याग रहा हूँ।
तो इससे पहले हालांकि पौंड्रक ने भी दिखाना चाहता, कहता है मैं भी सुदर्शन चक्र लेकर गया हूँ अपना। सुदर्शन चक्र फेंका उसने, वो रास्ते में गिर गया। वो भगवान ने कहा हो तेरी बैटरी कमजोर हो गई थी लगता है तेरे सुदर्शन चक्र की, तो कम से कम बैटरी तो चार्ज करके लेकर के आता तू। तो उस वक्त कौस्तुभ मणि जो है पौंड्रक ने ही पहना हुआ है, लेकिन वो इतना वाहियात है कौस्तुभ मणि, ओए होए। भगवान ने अपना कौस्तुभ मणि दिखाया, कहते ये इसको कौस्तुभ मणि बोलते हैं लल्लू। तो क्या कहाँ से उठा के लेके आया, चोर बाजार से लेकर के आया है इसको? ए वासुदेव ऐसा मत बोलो मेरे कौस्तुभ मणि को, असली है ये, असली है ये। तो कौस्तुभ मणि कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, उसको हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे उसकी, ना जी ना। सो इसीलिए इट इज वेरी यूनिक टू कृष्णा, कौस्तुभ मणि। इट्स अ ब्लू कलर लोटस शेप्ड मणि, और ये भगवान के गले में रहता है हमेशा। तो वैकुंठों में हो या फिर गोलोक वृंदावन में हो, कौस्तुभ मणि इज ऑलवेज देयर विद कृष्णा। तो ये भगवान का बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है कि इस प्रकार से भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर देयर इज अ गोल्डन लाइन, और साथ साथ में क्या है, कौस्तुभ मणि भी है। And he stood in the air with his lotus feet placed on the shoulders of Garuda. तो भगवान जो है बड़े इन वेरी रिलैक्स पोज भगवान गरुड़ के साथ रहते हैं, कि अपना हाथ ऐसे रख दें गरुड़ के ऊपर, ऐसा, या कभी कभी एक पाँव रख देते हैं, एक पाँव नीचे रखा होता है, एक पाँव गरुड़ जी पे रखा होता है। इससे वो गरुड़ जी को लग गया था कि ना, गरुड़ जी ने कहा भाई हम हैं तो हम ही तो वाहन है प्रभु के, अगर हम ना लेके जाए भगवान को, बोला कौन यहाँ से वहां लेकर ही जाएगा उनको। सही बात है। तो वहां ने एक बार क्या किया, पाँव एक रखा नीचे, एक पाँव ना रखा था गरुड़ जी के ऊपर, कहा चलो गरुड़, ले चलो। गरुड़ फड़फड़ा रहे हैं, गरुड़ भगवान ने कहा क्या हो गया, गरुड़ कहता है भगवान जोर तो पूरा लगा रहा हूँ, पता नहीं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर भगवान ने, फिर तो इससे तुमने क्या सीखा? कहता प्रभु ये सीखा कि वास्तव में जो उड़ता हूँ वो आप ही उड़ा रहे होते हैं, अदरवाइज मैं कोई नहीं हूं आपको कैरी करने वाला। अगर आप, मैं नहीं भी होऊंगा ना, आप खुद ही पहुंच जाओगे, आप दूसरा गरुड़ निकाल लोगे अपना, आपको तो आपको कमी नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, मेरे अंदर थोड़ा सा वो वाला आ गया था थोड़ा सा। हालांकि गरुड़ जी ऐसे नहीं है, गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये लीलाएं होती हैं हमको समझाने के लिए कि हम में कभी घमंड नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जो भी क्षमताएं हैं, सामर्थ्य है, एबिलिटीज हैं, जो कुछ भी है, अल्टीमेटली किसका दिया हुआ है? कृष्ण का दिया हुआ है। तो अगर आज हमसे कृष्ण कोई सेवा ले रहे हैं, और आज अगर हम कोई सेवा कर पा रहे हैं, ये सामर्थ्य कृष्ण से है। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। पौरुषम निशु, आई एम द एबिलिटी इन मैन। तो मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, इसीलिए। पर यस, भगवान गरुड़ जी के साथ जो है थोड़ा सा, गरुड़ हालांकि दासे रस में भी है, लेकिन हल्का सा उनका साखे रस भी है। इस प्रकार से तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उनके पास खड़े हुए हैं, और इन अ वेरी कैजुअल वे एक पाँव उन पे रखा हुआ और एक पाँव नीचे है, तो इस प्रकार से प्लेसिंग हिज लोटस फीट देन प्लेस ऑन द शोल्डर्स ऑफ गरुड़ा, उनके कंधे पे यहाँ पर जो है ऐसे करके, यहाँ पे उनके पाँव रखा, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि भगवान का जो रूप ऐसा नहीं कि करदम मुनि ने जो है यहाँ पर इमेजिन कर लिया। 10,000 साल तपस्या करने के बाद भगवान का रूप ऐसे नहीं कोई इमेजिन कर लेता है, ऐसा नहीं है। और होता है कि ना, अगर मान लो कोई अपनी कल्पना का इस्तेमाल करे, या मान लो होता है कोई सपने में कुछ देख ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सपने में देखेगा ना, तो उसका सपना दूसरे व्यक्ति के सपने से अलग होना चाहिए, राइट? पर हम देखते हैं सबका सपना एक जैसा है, चाहे जितने आचार्य हों सब कृष्ण का सेम वर्णन कर रहे होते हैं। चाहे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में करें, या गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करें, या उत्तरा ने जो डिस्क्रिप्शन दिया भगवान श्री कृष्ण का, सबका डिस्क्रिप्शन सेम कैसे है यार? कुछ तो अलग होना चाहिए ना। नहीं, अलग नहीं है। रीजन में कृष्णा रिवील्स हिज फॉर्म, भगवान प्रकट कराते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कल्पना, हम इमेजिन करें। जैसे कई लोग इमेजिन करते हैं, ऐसे अगर आप देखना जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनमें भगवान कैसे हैं? तो उन्हें भगवान है, वो धुआं धुआं सा हो रखा है, धुएं में एक सोफा लगा हुआ है, उसमें फिर भगवान बैठे हुए हैं, और बूढ़े से हैं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई उनकी। ओ यस। तो भगवान अक्सर इस प्रकार से दिखाए जाते हैं। पर क्या भगवान इस प्रकार के हैं दैट ही इज वेरी ओल्ड लुकिंग, और वहां पर बैठे हुए हैं बादलों में, ऊपर से कभी नीचे आते नहीं, बूढ़े बूढ़े से हैं, थके हुए हैं, क्रिएशन करके ना बूढ़े हो गए, थक गए भगवान? हाँ, कृष्णा इज नव यौवनम च। तो भगवान का पहला रूप कैसा है? तो ये भगवान का रूप रिवील होता है। तो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि नाम रूप गुण लीला। तो शुरुआत होगी नाम से, नाम लेते 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 नाम 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 रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप गुण 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 लीला नाम रूप गुण लीला नाम रूप गुण लीला। लेकिन चारों में कॉमन क्या है? नाम। बिना नाम के तो ना रूप प्रकट होने वाला है, ना गुण प्रकट होने वाले हैं, ना लीलाएं प्रकट होने वाली हैं।
तो इसलिए ऐसा नहीं चाहे जैसे भगवान के रूप का दर्शन हुआ चैंटिंग बंद, कहते अरे दर्शन हो गए रे, अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, अरे तुमने चैंटिंग छोड़ दी, कहते बस रूप के दर्शन हो गए ना तो नाम हमने छोड़ दिया। ना जी ना, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए भगवान के रूप के दर्शन होते हैं। तो जब भगवान रूप के दर्शन कराना चाहेंगे तो दर्शन होते हैं, अन्यथा हम दर्शन नहीं कर सकते। भगवान में और हमारे में अगर दर्शन करना हो तो भगवान में और हमारे बीच में चार पर्दे हैं। हमारी तरफ तीन पर्दे हैं, भगवान के ऊपर एक और पर्दा है। हमारी तरफ जो पर्दे हैं वो है सतो रजो तमो, ये तीन पर्दे हैं हमारी तरफ। और एक पर्दा है उनकी तरफ, योग माया का, योग माया समावृता। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से भगवान के ऊपर है चार पर्दे, यानी हमारे और भगवान के बीच में है चार पर्दे। इसलिए हम भगवान के दर्शन कर नहीं पाते। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई इम्पर्सनलिस्ट है यानी निराकारवादी है, और वो ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करना चाहता, प्रकाश यादव जी कैसे हैं आप, जय सिया राम, ऐसा क्या? नहीं, वास्तव में एक और पर्दा जो है भगवान की योग माया का है। तो जब ये योग माया का पर्दा भी हटता है तो भगवान के दर्शन होते हैं, अन्यथा भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। ऐसे कितने ही स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो कि भगवान का दर्शन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्यों? अगर आपने भक्ति नहीं की हुई तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको। जैसे कि भगवान के बारे में आता है ये 15वां श्लोक आता है ईशोपनिषद के अंदर, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापिहितम मुखम। तो आपका वास्तव में मुखम है पर हिरण्यमय पात्रेण, लेकिन ये जो गोल्डन इफल्जेंस है ना, ये इसकी वजह से ना मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तत्वम पोषण अपावृणु, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ सत्य धर्माय दृष्टे, हे प्रभु ये आपके आसपास की जो इफल्जेंस है ना इसको हटाइए ना मेरे प्रभु, तभी तो मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। जैसे भगवान गीता में बोल रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम, ये निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूं। तो जो निराकार जो ब्रह्म है ना इसका आधार भगवान श्री कृष्ण है, पर ये भगवान को कवर करे रखता है। तो हमारे बीच में और भगवान के बीच में देयर आर फोर कवरिंग्स। तो इसीलिए पहली बात तो इन तीनों से निकलना बड़ा मुश्किल है, सतो रजो तमो। तमो गुण तो अरे सबसे अधिक चिपका हुआ है हमको, रजो सतो, अरे ये हटेंगे फिर भी दर्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए निराकारवादी भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो इसलिए प्रभुपा जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि भगवान का जो फॉर्म है इट इज कॉन्कॉक्टेड, ये किसी कल्पना से हमने हमने मचाई है कि ठीक है ब्लू कलर का लड़का कर देते हैं, एक ऐसे मोर पंख लगा देंगे उसको, ठीक है ना, हाथ में बांसुरी पकड़ा देंगे, ऐसे करके हो जाएगा। तो कृष्णा का है ना, होना चाहिए 15-16 साल का लड़का बनाए थे, और क्या, तो बढ़िया रहेगा फिर। ठीक है, बेयर बॉडी रखेंगे, ऊपर कुछ नहीं, बनियान वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, नीचे धोती बना देंगे येलो रंग की, क्योंकि ब्लू और येलो ना दे लुक गुड साथ में, तो अच्छा रहेगा वो। ऐसा क्या? ना जी ना। सो कृष्णा's फॉर्म इज डिफाइंड एंड इट इज रिवील्ड, ये प्रकट होती है वास्तव में। और प्रकट होती है तब जब भगवान देखते हैं कि भक्त की बहुत तीव्र इच्छा है मेरे दर्शन करने की। जैसे रामचंद्र जी जब दंडकारण्य के वन में थे तो वहां पर एक साधु से मिले, और वो साधु जो है राम जी के दर्शन किए जा रहे हैं, दर्शन, वो अंतर मन के अंदर दर्शन कर रहा था। भगवान ने कहा अब तो मैं साक्षात यहाँ पर आया हुआ हूँ, ये भी अभी भी अपने अंतर मन के अंदर दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने पुकारा भी उसको, लेकिन वो अंतर मन में दर्शन कर रहा है, नाम ले रहा है, दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया, उसका अंदर के दर्शन बंद कर दिए। नॉब तो भगवान के हाथ में ही है ना, कंट्रोल भगवान के हाथ में ही है। तो राम जी ने नॉब बंद कर दिया, नॉब बंद कर दिया, दर्शन कहाँ दर्शन दर्शन कहाँ चले गए? आंख खोली, सामने देखा राम जी, कहते हैं राम जी, अरे आप तो बाहर ही खड़े हैं। राम जी ने कहा वो नॉब मैंने ही बंद किया था कि भाई मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, अब तू क्या अपने अंदर में देख रहा है, हियर आई एम। तो भगवान के दर्शन जब भगवान कराना चाहेंगे तब दर्शन होते हैं, अन्यथा वाला कौन कहाँ कहाँ ही दर्शन कर पाएगा। अब देखिए महाभारत के अंदर क्या सौभाग्य, जितने जितने लोग मरे वास्तव में, जितने लोग मर रहे हैं भगवान ने ऐसी व्यवस्था की थी, जो भी मरेगा ना भगवान के दर्शन करते हुए वो मरेगा। जिसको तीर लगा लेकिन सामने कृष्ण, तो जब भगवान के दर्शन करेगा कोई मरेगा, कहाँ जाएगा वो? बैकुंठ जाएगा वो। भगवान ने करोड़ों लोगों को तार दिया वास्तव में, करोड़ों के करोड़ों लोग गए बैकुंठ धाम महाभारत के युद्ध के अंदर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो इसीलिए भगवान के दर्शन कराना ये भगवान के ऊपर है। यस। तो इसीलिए बहुत तड़प होनी चाहिए इसके लिए, तो वी कांट रियली इमेजिन कृष्णा फॉर्म।
वी कांट इमेजिन। कृष्णा's फॉर्म इज इटर्नल। पर किसको प्रकट कराएंगे वो? अपनी इच्छा से प्रकट कराएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना, जैसे नारद मुनि को भगवान ने दर्शन कराए, दर्शन करा करके ना भगवान फिर ओझल हो गए, कहते लो जी ध्यान लगाया, इतने सुंदर कृष्ण के दर्शन। अरे, दर्शन करने के बाद भगवान ने दर्शन बंद कर दिए। बंद कर दिए? प्रभु, अरे क्या सुंदर रूप है आपका। भगवान ने दर्शन करा करे, दर्शन से बंद कराया। अब इतना तड़प और बढ़ गई नारद मुनि के अंदर। कहता अरे वो कहाँ चले गए वो दर्शन, अरे कहाँ चले गए रे वो दर्शन। सो देन ही बिकेम मोर डेस्परेट फॉर कृष्ण एंड देन ही बिकेम परफेक्ट। फिर उनको सिद्धि प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भगवान का प्राकट्य होता है। लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, क्रमशः प्रकट होते हैं। लेकिन आते हैं वे चले भी जाते हैं। भगवान कहते हैं अरे भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तेरे को तड़पने तड़पना छोड़ रहा हूँ, ताकि तू मेरे लिए तड़पेगा ना, तो तेरी तृष्णा और बढ़ेगी मेरे को पाने के लिए, मेरे को देखने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए। और इस प्रकार से तेरे को सिद्धि प्राप्त होगी, इसीलिए तो भगवान करते हैं ऐसा। जैसे ना, अगर जब व्यक्ति कोई भाव भक्ति के लेवल पे पहुंच जाता है, तो माधुरी कानून में बताया गया है कि अगर कोई भाव भक्ति पे पहुंच जाता है, के लेवल पे पहुंच जाता है, तो पहली बार जब उसको कृष्ण के दर्शन होते हैं ना, तो उसको विश्वास नहीं होता ये हुआ क्या। कहते हैं, क्या था ये कृष्ण के दर्शन, ये दर्शन हुए क्या मेरे को? नहीं, मेरे को दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मैं तो बहुत पतित व्यक्ति हूँ, मेरे को वाला दर्शन कैसे हो जाएंगे? तो हो सकता है ना मेरे को सपना आया होगा ये। हाँ, हो सकता है ना, भक्ति करते करते मेरे को ऐसी झपकी लग गई होगी, और सपने में मैंने शायद कुछ देख लिया होगा ऐसे, कृष्ण मुझे कहाँ दर्शन देने वाले हैं। फिर सोचता है नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर ये सपना होता है ना, तो मेरी आंखें ना थोड़ी सी भारी भारी होती, बिकॉज हम जब नींद से उठते हैं ना, आह, आंखें ऐसी ऐसी सी होती हैं, पूरी खुलती ही नहीं है। हरी बोल, गुड मॉर्निंग। आंखें भारी भारी सी होती हैं। लेकिन भक्ति का, लेकिन मेरी आंखें तो भारी भारी नहीं हो रही हैं। अरे, यानी कि सपना नहीं था ये, फिर क्या था ये? तो हो सकता है हेल्यूसिनेशन हो, ये क्वाइट पॉसिबल। मैं कृष्णा 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 कर रहा हूँ ना, हेल्यूसिनेशन हो गया होगा मेरे को। तो भक्त सोचता है नहीं यार, हेल्यूसिनेशन कैसे होगा ये? हेल्यूसिनेशन के अंदर आनंद नहीं आता, हेल्यूसिनेशन के अंदर सिर्फ विजुअल इल्यूजन होता है। यानी कि आपने कुछ ऐसी चीज देख ली जो कि नहीं है, लेकिन आनंद थोड़ी आता उसमें। लेकिन अभी जो दर्शन किए ना, मेरे को इतना आनंद मिला है, मेरा रोम रोम आनंद से भर गया है। तो इसीलिए ना, ये हेल्यूसिनेशन भी नहीं है। फिर क्या हो सकता है ये? क्या स्फूर्ति होगी लगता है भगवान की ना, मेरे को ऐसे कोई हल्का ग्लिम्स हो गया होगा। लेकिन मैंने जो देखा ना, वो ग्लिम्स नहीं था, वो फुल फ्लेजेड कृष्ण का रूप था। सर से लेके पांव तक, हाथ पांव सब दिखा, मैंने देखा। भगवान का मुखमंडल, उनकी आंखें, उनके होंठ, उनका नाक, सब कुछ देखा मैंने। स्फूर्ति भी नहीं है रे ये तो फिर क्या है ये? भक्त ऐसा विचार करता है, और फिर सारे विचार को लेकर जाता है अपने गुरु के पास। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भी है, जो सिद्ध पुरुष है, उनके पास लेके जाता है। कहता है गुरु महाराज जी, ये हुआ है मेरे साथ। अब आप बताइए क्या है, ये सपना था, ये हेल्यूसिनेशन थी, या स्फूर्ति थी, क्या था ये? तो उसे गुरु कहते हैं अरे कृष्णदास, तू बड़ा सौभाग्यशाली है रे। फिर गुरु उसका आलिंगन कर लेते हैं। तेरे को शुभकामनाएं, तेरा जीवन सिद्ध है। तेरे को साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए हैं। इट वॉज नॉट सम काइंड ऑफ विजुअल इल्यूजन, इट वॉज कृष्णा। तेरे को प्रभु के दर्शन हुए। ओ कृष्णदास, तेरा भजन सफल हुआ है। तूने कितने तपस्याएं की हैं, कितनी साधना की है, कितने व्रत रखे हैं, इस लक्ष्य को लेकर के तेरे को कृष्ण की प्राप्ति हो। शुभकामनाएं, तेरा जीवन सिद्ध हुआ। तो अरे, कृष्ण के दर्शन हुए मुझे, ये जान करके तो भक्त आनंद में तड़प जाता है। कहता है, प्रभु दर्शन दिया आपने मेरे को, दर्शन दिया आपने मेरे को। तड़प जाता है वो। और फिर उस वहां से उसकी भक्ति और तीव्र हो जाती है। कहते, कृष्ण दर्शन दिए, अरे वो तो पागल हो जाता है वो तो। फिर तो वो नाचता है, कूदता है, कीर्तन करता है, भजन में ऐसा उत्साही हो जाता है वो। मतलब उसको परवाह नहीं होती अब क्या दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अबे तुम तेल लेने जाओ यार। और फिर वो नाचता है वो, कि मुझे कृष्ण के दर्शन हुए। और इस प्रकार से उत्साह पूर्वक, उस तीव्र भाव से जब वो दर्शन करता है भगवान के, भक्ति करता है वो, तो कृष्ण के दर्शन उसको फिर से होते हैं। और इस बार जब कृष्ण दर्शन होते हैं, और ज्यादा विस्तृत होते हैं दर्शन। इतने सुंदर दर्शन होते हैं कि उसकी सारी इंद्रियां आंखें बन जाती हैं। उसके कान आंखें बन जाते हैं, नाक आंखें बन जाती है, जीवा आंखें बन जाती है, स्किन आंखें, आंखें 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 आंखें। क्यों? ये कृष्ण इतने सुंदर हैं कि इन दो आंखों से कृष्ण की सुंदरता का वो पान कर ही नहीं पा रहा होता। तो सारी इंद्रियां
दृष्टि बन जाती है, देखने वाली सेंसेस बन जाती हैं, देखने वाली इंद्रियां बन जाती हैं। कृष्ण के दर्शन करूं, और कृष्ण के इतने सुंदर दर्शन पा करके जो भक्त है वो बेहोश हो जाता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको उठाते हैं। तो कृष्ण जब उसको उठाते हैं, तो कृष्ण का जो स्पर्श है वो इतना मधुर है, इतना मधुर है, कि वो भक्त उठता तो है, लेकिन सारी इंद्रियां जो है उसकी स्पर्श इंद्रियां बन जाती है उसकी। अरे वो फिर से मूर्छित हो जाता है। फिर भगवान की मधुर वाणी आती है, कृष्णदास, अरे ओ कृष्णदास। भगवान की सुंदर वाणी सुनता है तो फिर से होश में आता है। इतनी सुंदर वाणी की सारी इंद्रियां उसकी कानों की इंद्रियां बन जाती हैं, कि मैं भाई इतनी मीठी आवाज के लिए दो कान कम है मेरे को, पूरे इतना मधुर कोई कैसे हो सकता है। तो कृष्ण की मधुर आवाज सुन करके फिर से बेहोश हो जाता है। फिर भगवान के शरीर की जो सुगंध है वो उसके नाक में जाती है। तो वो सुगंध सुनकर फिर से वो बाहर आता है, और उसकी सारी इंद्रियां जो है नासिका इंद्रियां बन जाती हैं, कि वो सूंघ सके कि नाक कम पड़ रही है, प्रभु की सुगंध इतनी अद्भुत है। अरे फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसको उठाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। अरे बस कहता है, अरे बस अपनी तो हो गई भाई। अरे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं माधुर्य कादम्बरी के अंदर, जब हमें भी कभी कृष्ण के अगर दर्शन होंगे, तो भला कैसे होंगे, ऐसे होंगे, क्रमशः होते हैं वो, धीरे धीरे करके। तो इसलिए जिनको थोड़ा लगता है पता नहीं प्रभु जी दर्शन होंगे कृष्ण के, विग्रह रूप में दर्शन करते हैं, हम जानते हैं साक्षात भगवान ही है। यस, नाम के रूप में भी भगवान तो है ही है। पर क्या वैसे जैसे हम जैसे मिलते हैं, बात करते हैं, और तो क्या कृष्ण के साथ ऐसे कभी होगा क्या? यस, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ऐसा होगा। हमें साक्षात कृष्ण के दर्शन होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे। तो भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, और फिर गुरुजन इस बात को कंफर्म करते हैं कि तेरे को जो दर्शन हुए ना, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए हैं तेरे को। जय हो। तो इसीलिए भगवान का जो रूप है ये भगवान प्रकट करते हैं, उनकी रूप माधुरी, उनके शरीर की सुगंध, उनकी उनकी वाणी की माधुरी, एवरीथिंग इज रिवील्ड टू द सिंसियर डिवोटी। वेरी इंपॉर्टेंट, टू द सिंसियर डिवोटी, जो भक्ति में बड़ा गंभीर है, उसको कृष्ण दर्शन देते हैं इस प्रकार से। तो इसे यहाँ जब करदम मुनि को जो दर्शन जो दिए हैं, तो इट इज रिवील्ड अनटू हिम, ये प्राकट्य किया भगवान ने। ले, यस। उसका जो अगला जो श्लोक आ रहा है उसमें चर्चा आ रही है कि इस प्रकार से आ, अष्टांग योग का पालन करके व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है। तो अष्टांग योग का पालन, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई अष्टांग का पालन करता है तो उसको अष्ट अंग योग कहा हो जाता है। तो पतंजलि जी ने जो जो दिया था, इट इज अष्ट अंग योग। तो उसके अंदर क्या आता है? यम, नियम। यम यानी ये डूज एंड डोंट्स ऑफ, ठीक है, जो योग के जो है डूज एंड डोंट्स फॉलो करने होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, अष्टांग। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये है अष्ट अंग बेसिकली, इसको बोलते हैं अष्ट अंग। लेकिन ये कौन कराता है आजकल ये अष्टांग? कोई नहीं कराता, कहता है इतना लोग कहाँ हैं यार, इतना तो लोगों का भूता ही नहीं है। तो फिर इसलिए उसमें क्या करते हैं, सिर्फ वो एक ही काम कराते हैं उसमें से, थोड़ी बहुत आसन हल्के बोल के, और बाकी प्राणायाम। चलिए सीधे बैठ जाइए, गहरी श्वास लीजिए, अनुलोम विलोम, कपाल भाती। अच्छा हुआ श्वास ठीक हो गया, कहते हैं हाँ जी, लीवर था बड़ा बड़ा कमजोर चल रहा था, तो लीवर भी अच्छा हो गया है, और किडनियां भी अच्छी हो गई हैं, हमारे तो डायबिटीज निकाल दिया जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है। तो इसीलिए आजकल तो सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग योगा कर रहे हैं, बस दैट्स इट। किडनी खराब है, दारू पी पी के किडनी खराब कर दी, आओ अनुलोम विलोम करें, आओ प्राणायाम करें, आओ कपाल भाती करें, बस वो कराते हैं। किडनी कैसी है आप? बाबा जी ठीक ठीक, किडनी ठीक है मेरी। अब तुम क्या करोगे? फिर से दारू पीऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसलिए आजकल तो ऐसे ही हो चुका है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये तो मतलब नकली हो गया काम एकदम। हालांकि जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें आसन इत्यादि और प्राणायाम करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, नो डाउट। आपका मन शांत होता है, नो डाउट। लेकिन ये मन का शांत होना और साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य होना, इसका पर्पस क्या है?
इसका पर्पस है प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। सो प्रत्याहार का मतलब यू एक्चुअली गिव अप, डू, जो जो जितने इंद्रिय तृप्ति के जो वस्तुएं हैं, आप त्यागते हो उसको। ये करना, पर ये कोई करता है ना? सब खाना पीना चलता है कैंप के अंदर, ये सब भी कर लेते हैं लोग, पीना पोना भी कर लेते हैं, प्याज लहसुन भी खा लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो प्रत्याहार का क्या प्रत्याहार है जी? धारण, यानी कि भगवान के ऊपर मेडिटेट करना। यस। फिर ध्यान, फिर समाधि। समाधि मतलब अनब्रोकन मेडिटेशन, मतलब किसी परिस्थिति में व्यक्ति चाहे उठे बैठे चले जैसा भी हो, लेकिन भगवान के दर्शन करता रहता है वो। दैट इज समाधि। ये होता है आजकल अष्टांग योग में? ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए आजकल जो चल रहा है अष्टांग योग, इट इज बोगस। बल्कि अगर आप ऋषिकेश और हरिद्वार जाके देखेंगे ना, हरिद्वार ऋषिकेश विच यूज टू बी हब ऑफ अष्टांग योगा, जहाँ लोग आया करते थे सीखने के लिए अष्टांग योगा, आजकल तो वहां पर रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, दैट्स इट। आजकल तो ऋषिकेश हरिद्वार ही बन गया बस, दैट्स इट। और जो लोग योगा वोगा करने के लिए आते हैं, मतलब ये लोग योगा ही नहीं कर रहे होते, टीचर बोल रहा था चलिए करिए, करिए, कर ही नहीं रहे, लोग बैठे हुए हैं। करो, हिलो, हिलो, शरीर हिलाओ। ऐसा अभी होता नहीं है, ऐसा लोगों का हाल है। दूसरे अष्टांग योग जो कि आजकल लोग प्रैक्टिस करते हैं, अरे वो तो मतलब बहुत ही निम्न स्तर का है। और प्रभुपा जी बोल रहे हैं जो पतंजलि का जो दिया हुआ था योग था, उससे वाला डिस्ट्रैक्शंस कौन लेकर के आया, डिविएशंस कौन लेकर के आया? तो प्रभुपा जी बोले मोनिस्ट, ये जो निराकारवादी ने वो लेकर के आए। तो निराकारवादी जो है भगवान के रूप को मानते नहीं, लेकिन पतंजलि योग सूत्र से एक्चुअली भगवान के दर्शन होते हैं। when somebody is in समाधि, तो समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने हृदय के अंदर यहाँ परमात्मा के दर्शन करता है। और परमात्मा के दर्शन करता है, अरे इतने सुंदर है परमात्मा, अत्यधिक सुंदर। जब कृष्ण इतने सुंदर हैं, तो उनका विस्तार भी बहुत सुंदर होंगे। तो परमात्मावादी जो होता है, ऐसा ध्यान लगा करके ना, जब परमात्मा दर्शन करता है, यार ये तो बहुत ही सुंदर है, अपने अंतर्मन में दर्शन कर रहा है वो। और पूछता है वो, आप कौन हो? जो भक्त पूछता है वो क्या पूछता है? मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास हूँ। नहीं, जो परमात्मावादी होता है पूछता है क्या? पूछता है, आप कौन हो? तो परमात्मा कोई बोलते नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देखिए अष्टभुज है, शंख चक्र गदा पद्म, मुस्कुराते हैं। कहता, मुस्कुरा रहे हो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप बोलिए ना कुछ। तो वो इंटरेक्शन करना चाहता है भगवान के साथ। तो इसीलिए जो शांत रस का व्यक्ति है, भगवान के सुंदर रूप के दर्शन करके, अष्टांग योग का पालन करके, फिर उनको निहारता है। और यहाँ जैसे यहाँ करदम मुनि प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना, फिर वो प्रार्थनाएं करता है भगवान को लेकर के, स्तुतियां गाता है भगवान की। तो ऐसा व्यक्ति शांत रस में होता है। तो जो परमात्मा के दर्शन करने वाले लोग हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक है असली वाले, दो है नकली वाले। एक जो असली वाले हैं वो हैं जो कि परमात्मा के दास बन करके अब उनका गुणगान करते हैं शांत रस में। तथा आपका स्तुतियां गाएंगे, एक स्तुतियां, दो स्तुतियां, स्तुतियां ही स्तुतियां गाते हैं शांत रस के अंदर। सो दे आर दोन एज परमात्मावादी। ठीक है, जो इन अ वे दे आर भक्तास एक्चुअली। सेवा तो नहीं करते, भगवान के सुंदर रूप को निहारते हैं और स्तुतियां गाते हैं शांत रस के अंदर। दास रस के अंदर, सॉरी, जो शांत रस, एक तो ये हो गया। जो दो है जो कि नकली वाले हैं, एक तो वो जो कि अब भगवान के जो परमात्मा रूप में दर्शन करने के बाद परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, सेवा नहीं करेंगे, निहारेंगे नहीं उनको, उनकी स्तुतियां नहीं करेंगे, उनमें एक होना चाहते हैं। दूसरे वो जो कि परमात्मा से निकलने वाला जो प्रकाश है उसमें एक होना चाहते हैं, कि हम इसमें मिल जाए और एक हो जाए। तो ये दूसरे वाले। लेकिन एक तो आत्मा होनी सकती ना ब्रह्म ज्योति के अंदर, ना भगवान के इस रूप के अंदर, दोनों में ही एक नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो है, ये अष्टांग योग में डिविएशन है। अष्टांग योग का पर्पस भी है भगवान के दर्शन करके शांत रस में स्थित होना, और शांत रस के बाद भी फिर वो प्यास लेकर के आना, मुझे अब भगवान की सेवा करनी है। उसके बाद व्यक्ति फिर दास रस में आता है, इस प्रकार से। तो इसीलिए सतयुग के अंदर जब जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते थे, वो था अष्टांग योग का पालन। अष्टांग योग का पालन करके भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, परमात्मा रूप में हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। वाह। तो ये है असली अष्ट अंग योग। लेकिन आजकल जो है, दे आर मोर आफ्टर सिद्धि, कि थोड़ा अष्टांग योग करेंगे उससे सिद्धियां प्राप्त होती है। एक तो आपको डिसीज फ्री हो जाएगी बॉडी, आपका पेट बाहर आया हुआ है, पेट अंदर हो जाएगा आपको, अरे क्या बात है। दूसरी है सिद्धियों के चक्कर में आए थे, पावर्स आती है उससे, आप किसी का मन पढ़ सकते हो, आप कोई भी अद्भुत कार्य कर सकते हो, अद्वितीय कार्य जो कि सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, वैसा कोई कार्य कर सकते हैं आप। सो अक्सर फिर मैजिकल ट्रीट्स के अंदर लोग चले जाते हैं। लाइक वन ऑफ द परमात्मावादीज, ही केम डाउन फ्रॉम हिमालयाज
और उसने अपने आप को 1.5 फुट बाय 1.5 फुट बाय 1.5 फुट के बॉक्स के अंदर अपने आप को फोल्ड कर लिया उसने, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। चलो जी, अष्टांग योग का पर्पस क्या है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है। वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया शाणे बच्चे। ये तुमने किया अष्टांग योग के बाद। सो दिस वे दे गेट साइड ट्रैक्ड बाय सिद्धीज, पावर्स। लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग आपके पास आते हैं, सर झुकाते हैं आपके सामने जाकर के। तो वो ना लोगों का सर झुकाना, जय जयकार होना, कभी कभी व्यक्ति इसकी और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अष्टांग योग में। अक्सर ना अष्टांग योगी भी होते हैं अकेले में करते हैं सारे काम। अब क्योंकि अकेले में योग साधना वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो कब ये डिस्ट्रैक्ट होंगे इनको कान पकड़ने वाला कोई नहीं होता। कहते हैं, ओए तू ध्यान लगा रहा था, किस पे ध्यान लगा रहा तू है? ये बताने वाला कोई होता नहीं। इसलिए भक्तों का जो संग है बड़ा सेफ है, क्योंकि भक्तों के संग में ना हम कह सकते हैं, ए भाई तू कहाँ जा रहा है, रुक जा, थम जा बेटा, भक्ति करनी है, डिस्ट्रैक्ट मत हो। साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अष्टांग योगी जो है दे ऑफन गेट साइड ट्रैक्ड। पर जो रियल व्यक्ति हुआ, जो जो कि वाकई में अनुयायी है अष्टांग योग का, वो भगवान के दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। तो उस बात को प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया है कि ज्यादातर जो होते हैं वो कैवल्य को प्राप्त करना चाहते हैं। कैवल्य मतलब वननेस, बट कैवल्य का मतलब होता है वननेस इन डिजायर। कृष्ण आपकी डिजायर क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। प्रभु मेरी भी इच्छा यही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य आपकी शरण में इकलौती। यस, डन। इसको बोलते हैं कैवल्य। दैट मीन्स वननेस इन डिजायर, नॉट वननेस इन एग्जिस्टेंस। अस्तित्व में हम एक नहीं होते भगवान के साथ, इच्छाओं में एक हो जाते हैं। कहते भगवान जो आपकी इच्छा है मेरी वही इच्छा है। यस, आपको प्रसन्न करना, बस यही मेरी इच्छा है। यस। तो इस प्रकार से देयर इज वननेस इन डिजायर। तो उसको वास्तव में एक्चुअल कैवल्य होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं रियल मीनिंग ऑफ कैवल्य इज टू बिकम फिक्स्ड, कि भगवान का साक्षात रूप क्या है। यस। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं वहां पर कि संप्रज्ञात, यानी कि व्यक्ति ऐसा जो कि मानसिक धरातल पे भगवान का दर्शन करता है, और एक असंप्रज्ञात यानी एक्चुअल में भगवान के दर्शन कर लेता है। तो इसलिए यहाँ जो करदम मुनि को दर्शन हुआ है, ये एक्चुअल में दर्शन है, ये सिर्फ कोई इमेजिनेशन वाले दर्शन नहीं है। ना 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 ना। तो इसीलिए वास्तविक कैवल्य का मतलब है भगवान के दर्शन होना, ये रियलाइजेशन होना कि मेरा स्वरूप क्या है कृष्ण के संबंध में, और भक्त किस प्रकार से भगवान से कनेक्टेड है। ये रियलाइजेशन जब होता है इन तीनों का, तो ऐसे में व्यक्ति को मानेंगे, ओ इसको अब इसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य जो है यहाँ पर निराकार वाला हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बोगस योगीज हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं वहां पर, ये दे आर मोर इनटू सेंस एंजॉयमेंट, मतलब ये इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, या शरीर अच्छा कर लेंगे और फिर उससे भोग करेंगे, बस दैट्स इट। तो इसीलिए ये लोग जो है बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। हमारे भक्त देखो फीस्टिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, थक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उठते हैं, फिर से नाचना गाना जपा करना, कथा सुनना। वाह। और जितने निराकारवादी हैं अल्टीमेटली इनको भी कृष्ण कथा करनी पड़ती है, बिकॉज इनके फॉलोअर्स कहते हैं यार बड़ा बोरिंग बातें बताते हो आप, थोड़ा कुछ लीला वगैरह बताओ। तो लीला वगैरह बताएंगे, बाद में फिर ये थोड़ा फिर अपना उसमें मसाला डाल देते हैं। तो इसलिए दीज आर द सो कॉल्ड योगीज। पर जो एक्चुअली पतंजलि के जो फॉलोअर्स होंगे, दे वुड फॉलो डूज एंड डोंट्स, सब फॉलो करते हैं वो वास्तव में। और उसके बाद उनको रियलाइजेशन होता है, अरे भक्ति करना, दिस इज अ रियल थिंग। फाइनली दे कम टू भक्ति योगा। ठीक है जी, यहीं पे देते हैं विराम। हरे कृष्णा, लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। नीता श्रीवास्तव माता जी, बोलिए जी, बोलिए माता जी। यस। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर और डिटेल में आपने हमें ये दोनों श्लोका समझाए। नीता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी, पूछिए। यस माता जी, क्या सवाल है जी आपका? प्रभु जी, मेरा सवाल नहीं, मुझे आपसे एक परामर्श चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन तो दो थे, लेकिन मैं पहले जो परामर्श है वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मैं आपके इस्कॉन द्वारिका से आप ही के थ्रू जुड़ी थी, तो आप मेरे पहले शिक्षा गुरु हैं, प्रथम शिक्षा गुरु। तो हाँ। अभी जैसे अयोध्या से मैं जुड़ी, क्योंकि पास में बेस था, वहीं पर मैं जाती थी। तो प्रभु जी यहाँ पर जो है अभी दीक्षा की प्रोसेस चल रही है। दीक्षा कहाँ में पर? जो लोग देहरादून में? इस्कॉन अयोध्या में, मतलब ये अयोध्या, कहा जा रहा अयोध्या, है कि ओ। हाँ, ओके। आप लोग इनरोलमेंट कराइए। तो प्रबोधानंद महाराज जी जो है उनके अंडर में दीक्षा की बात चल रही है। लेकिन जब हम लोग आपका क्लास कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न एज, उसमें बहुत सारे गुरु लोग महाराज जी लोग का दिया गया था कि आप इसमें से लेक्चर सुनिए जिनके साथ आपकी निष्ठा हो, जिनसे आपका कनेक्शन जुड़े,
उनसे आप दीक्षा लीजिएगा। तो प्रभु हाँ जी यार। हमारा जो, जी हमारा जो कनेक्शन जुड़ा वो भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी से जुड़ा। तो हाँ उन्होंने मुझसे कहा, तो कहा कि मैं पिछले 2 साल से उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, और मैं अपने अल्टर में भी उन्हीं की फोटो रख के उन्हीं से हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ। करती हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे दूसरे गुरु से दीक्षा ले लूं। नहीं माता जी, तो दीक्षा उन्हीं से लेना जिनसे आपका प्यार है। होता क्या है देखो, वैसे ना किसी भी सेंटर को कोई गुरु रेकमेंड नहीं करने होते, ये गलत है। जी जी मैं कोई नहीं होता हूँ आपके और आपके गुरु के बीच में आने वाला। तो जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उन्हीं से लीजिए। ऑल दो प्रबोधन महाराज भी सिद्ध पुरुष है, जी लेकिन प्रभु जी। जिनकी श्रद्धा प्रबोधानंद महाराज में हो उनको प्रबोधानंद महाराज से ही दीक्षा लेनी चाहिए। और जिनकी श्रद्धा भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज में हो तो उनको उन्हीं से ही दीक्षा लेनी चाहिए। अगर किसी की श्रद्धा मान लो स्वयं भगवान केशव महाराज जो कि लंदन में रहते हैं, तो उसको एक्चुअली फ्लाइट जी बुक करके लंदन जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए, दीक्षा वहां जाके लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में है, देखो अब इंडिया में तो कौन जाएगा विदेश, हर एक श्रद्धा तो उनमें है लेकिन वो विदेश में है ना। नहीं भैया, उधार लो पैसा, फ्लाइट बुक करो, जाओ दीक्षा लेकर के आओ। तो इसीलिए कोई रेकमेंड नहीं कर सकता आपको, आपको इन फला फला सी दीक्षा लेनी है। हम कौन होते हैं, हम गुंडे हैं क्या, हम दादागिरी करेंगे यहाँ पर? नहीं। तो इसीलिए आप जिनकी वाणी से आपको श्रद्धा है, आप उन्हीं से ही दीक्षा लेना। देखो होता क्या है, मान लो अगर आपने दीक्षा ले ली किसी और गुरु से जो किसी और ने रेकमेंड किया, अब आपका प्यार है जी ए से, दीक्षा हो गई बी से, लेकिन बी में श्रद्धा है नहीं, और तो बी भी सिद्ध पुरुष है। ठीक है। अब होगा क्या, क्योंकि आपका श्रद्धा नहीं है आपके गुरु के अंदर, जैसे आपने दीक्षा ली है, तो अपराध किसके प्रति है? अपने गुरु के प्रति। तो गुरु अपराध की वजह से भजन खत्म हो जाता है। योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बी स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द ऑफेंस। ये अपराध की वजह से कि आपने गुरु में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा आपकी ए में थी, ए से आपने ली नहीं दीक्षा। तो इसीलिए जी जिनकी वाणी में श्रद्धा हो उन्हीं से दीक्षा लीजिए। नो टेम्पल अथॉरिटी, नो जीबीसी, नो वन, नो अमोघ दास, नो वन कैन रिकमेंड यू कि आप इनसे दीक्षा लीजिए। यू चूज। ये आपके और आपके गुरु का रिश्ता है, हम कोई नहीं बनते इसमें इंटरफेयर करने वाले। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू बाबू जी। रीता माता जी, आप अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। काफी सारे हैंड रेज हैं, तो आप सभी भक्तों से विनती है कि वन क्वेश्चन एट अ टाइम ही करें, जिससे सभी भक्तों को समय मिल पाए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रणाम सो माता मच जी। प्रभु जी संग देने के लिए। जब आप आते हैं तो ऐसा लगता है हमारा आज के दिन फेस्टिवल हो गया है। अरे नहीं तो ऐसा नहीं है। अ, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आपने एक वर्ड यूज किया था स्फूर्ति, स्फुरित या स्फूर्ति। तो स्फूर्ति और दर्शन में क्या अंतर होता है? स्फूर्ति थोड़ी पार्शल होती है, मतलब कि ना सारे भगवान की जो ऐश्वर्य वैभव सुंदरता इत्यादि प्रकाशित नहीं होती। कुछ अंग के कुछ पार्ट, मतलब कि मान लो चेहरा नजर आ जाए, भगवान के हाथ नजर आ जाए, भगवान का अपर पार्ट नजर आए लेकिन लोअर पार्ट नजर ना आए, दैट तो धुंधला सा, मतलब नॉट वेरी क्लियर, तो उसको बोलेंगे वो इसको स्फूर्ति हुई भगवान की, ऐसा। तो प्रभु जी ये स्फूर्ति के केस में भी वो जो आपने 4 पर्दे बताए वो अप्लाई होते हैं क्या? होते हैं। भगवान ने पर्दे हटाए भी हैं, लेकिन फिर भी दर्शन अभी आधे पौने कराए हैं। अच्छा। तो प्रभु जी जैसे हम बोलते हैं ना, नाम रूप गुण लीला ऐसे प्रकट होगा, तो वो जो जब हम जप करते हैं उसी समय, या ऐसे कभी भी हम कोई और सेवा कर रहे हैं तब भी भगवान का स्फूर्ति हो सकता है? नाम जप में ज्यादा चांसेस हैं। यस। ऑल्दो भगवान जब भी दर्शन कराना चाहे करा सकते हैं, इवन व्हेन यू आर बेदिंग इन बाथरूम, भगवान चाहे तो वहां भी दर्शन दे सकते हैं। किचन में पराठे बना रहे हो आप, भगवान तो बस दर्शन वहां दे दे, उनपे कोई रोक टोक थोड़ी ना है। कृष्णा इज फ्री। लेकिन अच्छा। यूजली नाम जप करते हुए, हरि कथा सुनते हुए, किसी वैष्णव की सेवा करते हुए, तब जो है दर्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो पांचांग भक्ति है ना, बेसिकली पांचांग भक्ति के अंदर क्या आता है? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, विग्रह सेवा, धाम वास, साधु संग। ये पांच पंच ये बहुत पोर्टेंट है। इनमें ज्यादा चांसेस है कि भगवान के दर्शन हो जाए। और भगवान इज फ्री, ही कैन गिव दर्शन एनीवेयर, जो उनकी इच्छा हो। जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे वेलकम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आदि प्रणाम माता जी। हरि बोल। थैंक यू माता जी। सौरभ प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत हरे अच्छा आपका कृष्णा सवाल प्रणाम करा। प्रणाम प्रणाम, हरे प्रभु कृष्णा। जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे इतने देवी देवता, या वो तो हमने पढ़ा ही है इसमें भागवतम में, लेकिन हम्म। इतने जैसे पावरफुल लोग गॉड मैन बने हुए हैं, तो हम इस्कॉन से ही कैसे जुड़े प्रभु जी? वो कई बार डाउट होता है कि हम इस मतलब इसमें कैसे जुड़े कि इस्कॉन के साथ, बाकी मतलब कहीं पर अट्रैक्ट नहीं हुए किसी और के साथ प्रभु जी, तो उसमें कैसे किसी कौन हुआ? सा अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मैं समझा नहीं हुआ, कौन किससे अट्रैक्ट नहीं हुआ? मतलब इस्कॉन के साथ ही जुड़े ना प्रभु जी, तो मतलब बाकी इतने सारे मंदिर होते हैं और बहुत लोग उनसे भी जुड़े रहते हैं, पावरफुल भी होते हैं, तो उन हम्म। सब चीजों। हाँ, तो इस्कॉन से प्रभु देखिए, जी हम कैसे और मतलब किसी की तो गारंटी ले नहीं सकते कि कौन जी जी प्रमाणिक है कौन प्रमाणिक नहीं है। कथा करने वाले तो कई लोग हैं। और मतलब मैंने देखा इस्कॉन के बाहर कहीं ज्यादातर जो कथावाचक है, ज्यादातर ज्यादातर मतलब 95% ऐसे कथावाचक हैं जिनकी फिलोसफी में गड़बड़ी होती है एक्चुअली। मतलब वो शास्त्रिक right, नहीं होती। आई वाज हियरिंग समवन, उसने वो बोला कि वो कथावाचक है, फेमस है, अरे कृष्ण के साथ शतरंज खेलिए, लूडो खेलिए, कैरम बोर्ड खेलिए। लो भाई, ये कौन सी साधना है भला? को ऐसे भी है कथावाचक जो भगवान को बिठा करके मिकी माउस देखते हैं वो लोग, डोनाल्ड डक देखते हैं। जिंदगी तूफानी है जहां है डकटेल्स, डकटेल्स देते हैं, सामने गोपाल जी बिठाए हुए हैं। ओ लो जी। तो इसीलिए मैं बाकी की लोग तो मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन इसको नहीं गारंटी की ना, यहाँ सिद्धांत 100% पक्का है। जितना गौड़ियों में सिद्धांत है ना, विश्वास मानिए, मैं देखे मेरे को 25 साल हो गए, जितना गौड़ियों में सिद्धांत है ना भगवान का लेकर के, उनकी भक्ति को लेकर के, उतना दुनिया जहां में किसी के पास नहीं है। और ये मेरा खुला चैलेंज है। जितना राधा रानी का गुणगान हमारे इस्कॉन के डिवोटी करता है ना, उतना कोई करके दिखा दे यूट्यूब में, मेरा चैलेंज है खुला, दिखा दे कोई। राधा कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, जितना नाम तत्वों के ऊपर इस्कॉन में चर्चा होती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती। तो इसीलिए बाकी सब हमारे लिए, हम निश्चित रूप से जो प्रमाणिक हैं उनको भी हम नमन करते हैं, लेकिन अपने संप्रदाय पे गर्व करते हैं। ठीक है जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु हरे जी, धन्यवाद। प्रणाम जी, हरे हरि कृष्णा। बोल। थैंक यू प्रभु जी। प्रशांत प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रियंका माता जी। मोगलीला प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। जी सर, प्रणाम, हरे आप कृष्णा। सर, I mean, I'm like too much flattered with your communication, sir. The way you communicate, you tell us seriously. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके सारे वीडियोस वगैरह सब देखता हूँ मैं। कई बार प्रश्न आते हैं दिमाग में, आज ये मौका मिला तो मैं, कुछ शंकाएं हैं और एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट तो जी। ये है सर, कभी आपके लाइव दर्शन का मौका मिले, कैसे हो सकता है वो थोड़ा बताएं। लाइव दर्शन, मेरे दर्शन कुछ नहीं रखा हुआ। आप कहाँ रहते हो वैसे हो? मैं गुरुग्राम में रहता हूँ सर। ओके, तो आप कौन से टेम्पल से कनेक्ट हो, राज दामोदर या राधा गोपीनाथ? सर मेरे पास तो घर यहाँ सेक्टर 46 के पास सामने 45 में एक मंदिर है, इस्कॉन का, वहीं हाँ, जाता हूँ सर वो। राधा गोपीनाथ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, कभी गुड़गांव आएंगे तो तो मिलेंगे फिर। ठीक है जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी कृपा होगी। मेरा क्वेश्चन ये था सर आपसे, प्रभु जी आपसे, जैसे आपने बताया भक्ति, और अभी मतलब क्वेश्चंस तो बहुत सारे, इट्स लाइक सीरीज। मैं सीरीज नहीं पूछ रहा, दो तीन चीजें मुझे पूछनी थी। मैंने मैंने इस्कॉन से या किसी से कभी कोई दीक्षा नहीं ली है। प्राइमरली मैं सनातन धर्म का हूँ, तो सारे भगवान मानता हूँ, नारायण भी मानता हूँ और शिव जी भी मानता हूँ। राइट, तो मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर टेस्ट या कोई वो नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। गोवर्धन की परिक्रमा देता हूँ तो राधा रानी और कृष्ण जी का नाम लेता हूँ, और घर हम्म। पर कोई त्योहार होता है तो उस भगवान का नाम लेता हूँ। मतलब मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि मैं इस्कॉन को ही फॉलो करता हूँ या किसी को। हाँ, होगा। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये था सर, मैं क्यों नहीं इस्कॉन को फॉलो करता? क्योंकि मैंने देखा, जैसे आपने कहा अभी, आपने वर्ड यूज किया कि हमारे संप्रदाय के, तो मुझे लगता है कभी कभार ऐसा लगता है कि सनातन के अंदर ही शायद इस्कॉन को जो फॉलो कर रहे हैं वो एक थोड़ा सेपरेट होते जा रहे हैं। मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर भी देखा मैंने, वो बाकी चीजें फॉलो नहीं करते, या वो कई कई फेस्टिवल्स वगैरह फॉलो नहीं करते। वो सिर्फ और हम्म। सिर्फ कृष्ण जी के एकादशी और वही फॉलो करते हैं। डेफिनेटली हम्म। सबकी अपनी इच्छा है, पर मुझे हम्म। थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो, जैसे हिंदुओं में से जैन थोड़े अपने आप को अलग मानने लग गए, या कई लोग अपने आप को अलग मानने लग गए, वैसा मुझे थोड़ा सा फीलिंग आती है। इसलिए मैं हम्म। ज्यादा फॉलो नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट।
तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन जानना था सर, ये जैसे आपने कहा कि हमारा संप्रदाय, और ये इसका क्या मतलब क्या है? मतलब हम क्या? हैं हिंदू ही, या कल को फ्यूचर में ऐसा विजन भी है कि इस्कॉन विल बी लाइक सेपरेट 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 थिंग? हाँ जैसे आज जाट अलग चल रहा है, हाँ। जैन अलग चल रहा है, कल को राजपूत। कोई और अलग चल रहा है। ओके। देखिए जैसे बाकी जो हम बोलते हैं ना हमारा संप्रदाय, सो मैंने इसे संप्रदाय ना, इट मीन्स द लाइन ऑफ ऑथेंटिक नॉलेज। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। यानी कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये परंपरा में प्राप्त किया जाता है, जो भगवत गीता ज्ञान है। कौन बोल रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है ना? तो इसीलिए जो ज्ञान होता है वो ऐसा नहीं कि डिस्पर्स है, ले लो किसी से भी ले लो, नहीं। एवं परंपरा प्राप्तम। पद्म पुराण के अंदर श्लोक आता है, संप्रदाय विहीन ज्ञान मंत्रस्ते निष्फल मतः। सो संप्रदाय विहीन, अगर आप प्रामाणिक संप्रदाय से नाम लेते हैं या मंत्र लेते हैं और ज्ञान लेते हैं, निष्फला मतः, तो वो निष्फल बताएगा। शिव जी बता रहे हैं इस बात को। तो इसीलिए संप्रदाय के अंदर शिक्षा लेना ये रेकमेंडेड है स्वयं भगवान श्री कृष्णा हिमसेल्फ इन दी भगवद गीता। तो क्या इस्कॉन अपने आपको सेपरेट कर रहा है कि सनातन धर्म मेन स्ट्रीम सनातन धर्म? अगर आप देखिए मेन स्ट्रीम सनातन धर्म है ना, वो मेन स्ट्रीम रहा ही नहीं है। आज आप टिपिकल किसी भी हिंदू को देखो, जो मतलब सनातन धर्म के जितने मंदिर है ना, आप जाके देखिए कितने लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं। कोई साधना, कुछ कोई कोई किताब पढ़ना, कोई ग्रंथ पढ़ना, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? कुछ भी दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, या तो सोमवार चले जाएंगे या मंगलवार चले जाएंगे, अपनी इच्छा पूरी करेंगे, अपनी इच्छा मांग लेंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, टुश टुश टुश। हमको लगता है, वो लगता है ये सनातन धर्म है शायद। अब एक्चुअली सनातन धर्म है ही नहीं। और जहां तक सारे देवी देवताओं को और भगवान को एक साथ खड़ा कर देना, ये भी तत्व में नहीं आता। अगर आप भगवदगीता अगर पढ़ेंगे, तो चैप्टर 7 वर्स नंबर 7, सो भगवान कृष्ण साहब बता रहे हैं, नत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से ऊपर कोई तत्व नहीं है। भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं इस बात को। और बाकी लीलाएं भी अगर पढ़ेंगे, मैं उसमें डिटेल में जाऊंगा तो यहाँ 1 घंटे का लेक्चर और हो जाएगा। तो इस्कॉन जो फॉलो कर रहा है इज फ्रॉम श्रीमद भगवत गीता। अगर ऐसा होता ना, हम किसी गुरु जी ने कोई किताब लिखी थी, फला फला गुरु जी की लाल किताब, पीली किताब, कहते हैं जी आप ही तो खुद की किताबें हैं, आप कौन से शास्त्र पढ़ा रहे हो? फिर तो हम मानते भाई हाँ वाकई में इस्कॉन लगता है कोई अलग ही है ये। सोसाइटी अब इनका अपना भी है, लाल किताब, पीली किताब, नीली किताब। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद, ब्रह्म संहिता, शास्त्र। आप देखिए आज कितने मंदिरों में आप सर्वे करके आ जाओ, ठीक है जी, कि सुबह शाम गीता भागवत पे कथा चलती हो, आप एक बार खुद ही सर्वे करके आ जाओ। कोई कथा नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई टीचिंग्स नहीं है, होता ही नहीं कहीं पर। जाते हैं, थोड़ा जल चढ़ाना है, थोड़ा दूध चढ़ा देना है, इच्छाएं मांगनी है, मैं हफ्ते भर आऊंगा या आऊंगी, 21 दिन आऊंगा। ज्यादातर जो है सनातन धर्म आज इस तरह का हो गया, रिचुअलिस्टिक, वो भी इच्छाओं वाला, बट देयर इज नो स्पिरिचुअल कनेक्शन एज सच। और ऐसा नहीं कि हम मानते हैं कि इस्कॉन वाली है बस, बाकी सब तो बोगस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 प्रमाणिक संप्रदाय बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, पद्म पुराण में बताए गए हैं, ठीक है जी। एक है मध्व संप्रदाय, जिसकी लाइन में हम लोग आते हैं, मध्वाचार्य जी का संप्रदाय। एक है रामानुजाचार्य का संप्रदाय, श्री वैष्णव। अब देखा है साउथ इंडिया के अंदर तेरा श्री वैष्णवास, उनके ऐसे करके तिलक होता है, बीच में लाल रंग का तिलक होता है। सो दे आर श्री वैष्णवास, जो तिरुपति बालाजी में मिलते हैं आपको, तो दे आर श्री वैष्णवास एक्चुअली। तो ये भी प्रमाणिक है। इस तरह से निम्बार्काचार्य के फॉलोअर्स, ये आपको वृंदावन एरिया में मिल जाएंगे, वो भी प्रमाणिक है बिल्कुल। इसी प्रकार से वल्लभाचार्य जी के फॉलोअर्स बिल्कुल प्रमाणिक है, जिनको पुष्टि मार्गी बोलते हैं। तो हम बोले भाई इस्कॉन के अलावा सब प्रमाणिक नहीं है, हम ही बस प्रमाणिक है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। सो मेनी ग्रेट सोल्स इवन आउटसाइड इस्कॉन। लेकिन हम ऐसा, हम इवन लेके भाई सब बराबर, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। डेरा झूठा सौदा सच्चा सौदा, वो भी सही है, सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है, ये सब सही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, हम कहें सिर्फ हम ही सही है बाकी सब गलत है, ये भी गलत है। कि सिर्फ इस्कॉन ही सही है बाकी सब तो गलत है। अच्छा बेटा तुम बड़े बड़े फन्ने खा बन रहे हो तुम, है? तो हमारा ऐसा हालचाल भी नहीं कि हम बस सिर्फ खुद को प्रमाणिक मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे अलावा गौड़े मठ भी है, गौड़े मठ प्रमाणिक है। somebody is from दीक्षा ली हुई है, मान लो गौड़े मठ से, हम अच्छे से मिलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जय हो, वांछा मिल लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए संप्रदाय में शिक्षा लेने लेने का लाभ भी मिलता है आपको, सिद्धांत प्योर अनएडल्टरेटेड मिलता है। बेसिकली जितने संप्रदाय है ना, इनकी आवश्यकता पड़ती है कलयुग के अंदर। इसे चारों जो आचार्य हैं कब आए? कलयुग में। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य,
विष्णु स्वामी कब आए? कलयुग में। क्यों? ये जो संप्रदाय है पिछले युगों में नहीं थे, क्योंकि पिछले युगों में सबको पता है भगवान श्री हरि की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वास्तव में ये सबको पता है। तो इसलिए संप्रदाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कलयुग में क्या इतनी कंफ्यूजन है, अरे बाबा रे बाबा। तो ये नए नए बाबा लोग आते हैं यूट्यूब में, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो लोग कभी इनसे इन्फ्लुएंस, कभी उनसे इन्फ्लुएंस। कोई ज्यादा फेमस है, किसी की दाढ़ी बड़ी अच्छी है, किसी फॉलोइंग बहुत है, कोई इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, कोई हिंदी बड़ी अच्छी बोलता है, लेकिन प्रमाणिक ज्ञान ज्ञान कहाँ है? ये पता कैसे करेंगे? तो इसलिए संप्रदाय विहीन ज्ञान मंत्रस्ते निष्फल मतः। इसीलिए जो है हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर आप देखें ना, टिपिकल मेन स्ट्रीम सनातन धर्म इज प्रैक्टिस्ड बाय प्रमाणिक संप्रदाय विच आल्सो इंक्लूड्स इस्कॉन। जैसे आप देखो पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का प्रचार किसने किया है? इस्कॉन ने सबसे अधिक किया है। ऑल्दो देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे गौड़े मठ इत्यादि, वो भी है, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, नो डाउट। लेकिन सबसे अधिक प्रचार प्रसार किसने किया है? इस्कॉन ने। आज चाइना के अंदर 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। एक नास्तिक देश में 80,000 हरे कृष्णा डिवोटी हैं। ये हर उड़ती चीज खाने वाले, हर तैरती चीज खाने वाले आज भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन का, चाइनीज। 80,000। 1.2 मिलियन डिवोटीज आर इन रशिया, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है। वहां पर 1.2 मिलियन, 12 लाख डिवोटीज हैं रशिया के अंदर। तो एक कौन कर रहा है ये काम? इस्कॉन कर रहा है काम। तो अगर ये सनातन धर्म नहीं होता तो फिर ये क्या है? फिर यही तो ऐसी, यही तो सनातन धर्म है। भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम लेना, गीता भागवत का पठन पाठन करना, विग्रह की सेवा करना, ये दिस इज सनातन धर्म। तो ऐसे नहीं मेन स्ट्रीम से सनातन धर्म से हम अलग हुए, नहीं, यही तो मेन स्ट्रीम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज जो सनातन धर्म आज हम देख रहे हैं मंदिरों के अंदर, क्या हाल है वहां पर? तो कुछ जो पेड पुजारी हैं वो पूजा अर्चना कर लेते हैं, उसलिए उनको सैलरी मिल जाती है, दैट्स इट। पर शिक्षा भरम। तो इसीलिए मैं तो देखो, मैं तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में होकर गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सीधे सीधे इस्कॉन में आ गया। मैं तो बाकी जो गुरु जी लोग हैं उनके पास भी होके आया हुआ हूँ मैं। यही प्रमाणिक है वास्तव में। और मैं कहूँ सिर्फ यही प्रमाणिक है, ऐसा भी नहीं है, और भी हैं हमारे अलावा भी प्रमाणिक लोग हैं। और जो हमें मिलते हैं बड़ा सम्मान से उनसे मिलते हैं। हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण, जय राधे श्याम, जय गोपाल जी की जय। वी डू दैट। तो श्योर। इसीलिए कृष्णा इज गॉड नॉट एज पर इस्कॉन, बट एज पर शास्त्र ही इज द लॉर्ड। ठीक है जी। जी सर। राइट हाँ सर। जी। एक छोटा सा फॉलोअप और है। हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया डेफिनेटली चाइना में 80,000, मार्वलस, राइट, आई मीन आई अंडरस्टैंड। हाँ जी। हाँ जी। रशिया में एब्सोल्युटली। मगर फिर बांग्लादेश एग्जाम्पल भी है सर, जहां पर हमको खत्म ही कर दिया गया। राइट। अब मेरा, मैं देखिए सर, हाँ आई जी। मीन सॉरी प्रभु जी, मैं हाँ बड़ा सिंपली एक चीज सोचता हूँ कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति कर हाँ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड स्पेशली इस्कॉन, मैंने भी बहुत बार प्रसाद पाया है इस्कॉन में। मैंने खुद ने हाँ भी सेवा करी है। मैं मैंने सेवा गुरुद्वारा में भी करी है फॉर दैट मैटर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम सबकी सेवा करते हैं, इस्कॉन की बात करते हैं, सिंस इस्कॉन पे अपन चल रहे हैं, इस्कॉन सबकी सेवा करता है, भक्ति भी बहुत प्रचार करता है, एब्सोल्युटली। बट दूसरी तत्व भी इतने ज्यादा फोर्स से बढ़ते जा रहे हैं, एंड दोज फोर्सेस आर एलिमिनेटिंग अस, right, from everywhere almost, if you see, right, within India they are hijacking us. Outside India definitely they have hijacked us. All the peripheral countries nearby India, we have seen that how Sanatan, or or every part of Sanatan is demolished or destroyed, right? So what I'm trying to say is, आपको, मैं सिंपल एक जानना चाह रहा था कि हमको और हमारे आने वाली जनरेशन्स को भक्ति के अलावा डिफेंस के ऊपर भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आपको लगता है सिर्फ इसी से काम हमारा चल जाएगा जी। हाँ जी। या फिर भक्ति से, या फिर कुछ और हम्म, भी हमको करना होगा जी, बिल्कुल। तो देखिए वैसे ना, प्रोटेक्ट धर्म की रक्षा करने के लिए आपको आपको शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए, दोनों चाहिए। शस्त्र और शास्त्र बोथ आर रिक्वायर्ड। लेकिन शास्त्र वाले जो लोग हैं वो शास्त्र पढ़ाएं, और शस्त्र वाले लोग शस्त्र भी उठाएं। जैसा आज हम देखते हैं इंडिया के अंदर देयर इज आरएसएस इज डूइंग फैबुलस वर्क, वंडरफुल वर्क एक्चुअली। 60 लाख तो इनके रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं। सो आरएसएस जो है कहीं ना कहीं हार्डवेयर का काम करता है, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पे जा करके लड़ना और सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ना। तो शास्त्र वाला काम भी करते हैं और शस्त्र वाला काम भी करते हैं। हम इस कौन में जो है, हम शास्त्र वाला कार्य करते हैं। सोचिए अगर मैं ना एक टिपिकल जो हमारी कांग्रेगेशन है गृहस्थ लोगों को बोलूं, भाई हम लोग कल से कुंफू कराटे शुरू कर रहे हैं, सो कुंफू कराटे क्लास में जो है प्लीज आ जाइए। कितने लोग आ जाएंगे वैसे बताइए? कोई नहीं आने वाला है। मान लो आ गए 10% लोग आ गए, नहीं हम भी सीखेंगे कुंफू कराटे, ठीक है, तो में से कितने लोग एक्चुअली में सीख लेंगे उसको?
और मान लो आपने सीख भी लिया, आप ब्लैक बेल्ट हो गए, जब सामने से 500 लोग कट्टा लेके आते हैं ना, आपका ब्लैक बेल्ट काम नहीं आएगा। इसीलिए हर व्यक्ति कुंफू कराटे सीख लेगा, मार्शल आर्ट सीख लेगा, नहीं सीख पाए। टाइम किसके पास है? ये बच्चे, ये घर गृहस्थियां, इनमें से टाइम निकालेंगे रोज हम 1 घंटा कुंफू कराटे सीखने के लिए? प्रैक्टिकली है। बट यस, वी कैन ट्रेन सम सेक्शन इन आवर सोसाइटी जो कि ऐसा कार्य करे भी, जो कि रक्षा कार्य करे। दे आर टू एम्पावर्ड लाइक दैट। तो ब्राह्मण कभी क्षत्रिय कार्य नहीं करते, परशुराम इज एन एक्सेप्शन। पर यूजली ब्राह्मण ब्राह्मणिकल काम करते हैं, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय वाला काम कार्य करते हैं। तो हम कहें हमें सिर्फ ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, क्षत्रिय भी चाहिए। पर ये सोचे सिर्फ सब क्षत्रिय बन जाए फिर सब, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली। तो इसीलिए सबको अपना अपना कार्य करना है। तो कुछ लोग शिक्षा भी देंगे, कुछ लोग वैसे भी रक्षा करेंगे। एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट सनातन धर्म। और आजकल जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये वास्तव में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखो जहां पर अनरेस्ट आ जाता है ना, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब कौन कंपनी खोलेगा बताओ वहां पर? बांग्लादेश में कोई भी नहीं। नौकरियां होंगी अब? नहीं। 40% बिजली जो जाती है बांग्लादेश के अंदर, इट इज बाय अडानी। अब अडानी अगर उसमें से मान लो 50% भी बिजली कम कर दे, 20% तो कारखाने घर गृहस्थियां अंधकार में आ जाएंगे जी। यस। तो इसीलिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे अभी देखना। और इसमें होगा क्या? हिंदू भागेंगे। अब हिंदू भला कहाँ भागेंगे? हिंदू पास एक बहुत बड़ा घर है, वो है इंडिया। क्योंकि सीएए और एनआरसी के माध्यम से दे वुड कम टू इंडिया, दे कैन सेटल डाउन हियर, बिकम रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। व्हाई नॉट? सो सीए का सहारा लें, सेटल हो। साथ ही अब बांग्लादेश विल गेट डिवाइडेड, बिकॉज जो अनरेस्ट आएगा और इकोनॉमिकल स्लो डाउन आएगा यहाँ पर, बांग्लादेश विल बी डिवाइडेड 2 पार्ट्स। एक होगा विच इज मोर फॉर मुस्लिम्स, एक होगा विच इज फॉर द अदर माइनॉरिटीज। ये होगा। और अब क्योंकि ट्रम्प भी आ गया यूएसए में, एंड ही इज वेरी पक्का अबाउट दिस, ही इज अ राइट विंगर। और अब इंडिया का साथ देकर के दे वुड डू समथिंग वेरी टैंजिबल इन कमिंग टाइम्स। तो मुझको लगता है दैट गुड टाइम्स आर कमिंग। लेकिन एक झंझावात का समय था। झंझावात में क्या होता है? पुराने स्ट्रक्चर्स टूटते हैं, नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो नए स्ट्रक्चर्स हैं विल बी गुड फॉर धर्मा। पर इसमें थोड़ा समय लगता है। सो पेशेंटली वी आर टू प्रे एंड वेट। ठीक है जी। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, 2 हैंड रेज और हैं, क्या हम ले सकते हैं? बोले बोले। रम्या माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अकेली हूँ, मतलब मेरे यहाँ प्रभु जी जो है उन वो जॉब के कारण वो दूर है। जो मैं और मेरे बच्चे, 2 बच्चे छोटे हैं, उनके साथ मैं रहती हूँ और भक्ति करती हूँ। और मैं सेवा के मतलब से मैं फिजिकली सेवा या जहाँ भी प्रोग्राम्स होता है वहां जाना आना ये ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। मैं घर घर में ही सेवा कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा जाना आना ये मुझसे नहीं होता, क्योंकि बच्चों को भी लेकर जाना है, बच्चों को लेकर आना है, उनका पढ़ाई देखना है। तो इससे मैं थक जाती हूँ, फिजिकली भी थक जाती हूँ और मेंटली भी थक जाती हूँ। और मेरी भक्ति पूरा खराब हो रही है, चैटिंग नहीं हो रहा है। तो मैं कितना सेवा करना है, मुझे कितना नहीं हफ्ते में करना है, एक ये दिन समझ में। हफ्ते में एक हाँ दिन प्रभु करना है। जी। संडे संडे बच्चों को लेके जाओ, साधना करो, भक्ति करो, गुरु पूजा अटेंड करो, भागवतम क्लास अटेंड करो, प्रसाद पाओ। हफ्ते में एक दिन, बाकी दिन आप घर ओके। पे। हाँ प्रभु जी। और ठीक है ना? अगर ऐसे स्कूल लेके जाओ रोज अगर करो, प्रभु जी। वो भी हाँ प्रैक्टिकल नहीं। बिल्कुल मत करो, तो सूख जाओगे बिल्कुल आप, साधु संग नहीं प्रभु होगा। जी, सच में बहुत बहुत मेरा तो पूरा ये फिजिकली और मेंटली इतना टायर्ड हो गई हूँ कि मेरा हो टायर्ड पहले हो, हाँ, टायर्ड हो, पहले फिजिकली टायर्ड हो, पहले लेकिन थ्री हफ्ते थ्री में। ओ क्लॉक को हाँ प्रभु जी, पहले 3 o'clock को सुबह उठ के मैं चैंटिंग सब करती थी, पूरा अच्छे से चल रहा था। अभी नहीं उठ पाती हूँ। चैंटिंग नहीं, बुक रीडिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही सेवा, फिजिकली सेवा हो रही है। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भक्ति नहीं बढ़ेगी ऐसे। हम्म। जस्ट ट्राई योर बेस्ट माता जी। ठीक है ना? और आपके हाँ हस्बैंड कहाँ कहाँ काम करते हैं? माता जी, आप अनम्यूट करें, मेरे से गलती से अनम्यूट हो आपके गया। हस्बैंड कहाँ काम करते हैं माता जी? 1 मिनट प्रभु जी, माता जी म्यूट पे हैं। हाँ प्रभु जी, वो मस्कत में है, मस्कत में। तो आप क्यों नहीं चले जाते मस्कट? वहां पर वो डेजर्ट है, वहां पर स्कूल नहीं है प्रभु जी, इंडियन स्कूल, इसलिए वो भी 16 राउंड चैंट। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने पति को बोलो इंडिया में नौकरी ढूंढे, इंडिया में नौकरियां हैं, इंडिया में नौकरी ढूंढे कहीं ना कहीं, और आप अपनी फैमिली के साथ रहो। ठीक है, शादी कर लिया, पति वहां बैठा है 7 समुंदर पार, आप यहाँ बैठे हो, ये क्या, ये कौन सी गृहस्थ जीवन है भाई? तो अपने पति को बोलिए अपना वहां से रिजाइन करके यहाँ पर नई जॉब, मतलब पहले नई जॉब ढूंढे,
फिर वहां रिजाइन करें, एंड ही शुड सेटल हियर विद द फैमिली। ठीक है जी, वो वहां जूझ रहे हैं, आप यहाँ जूझ रहे हो, ये क्या है, साथ साथ होंगे तो एक दूसरे का सहारा होता है। सो टेल योर हस्बैंड टू कम बैक। ठीक है जी। जी। ओके, अगला सवाल। यस। थैंक या हिरणमयी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम तो कृष्णा के दास है। हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन घर में सब लोग अपने अपने जैसे नहीं होते कृष्णा भक्त। वो हाँ, सभी को ऑब्वियसली। मानते हैं। या। आ, हाँ। तो घर का जो अल्टर है प्रभु जी, उसमें तो हम्म। सभी देवी देवता है, सब है। तो हम्म। हमको भी रोज उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो हमको तो अपराध नहीं लगता ना प्रभु जी? ना, आप बस कृष्ण को ऊपर रखो, बाकी देवताओं को थोड़ा नीचे रखो, क्योंकि देवी देवता भगवान के भक्त हैं। शिव जी हाँ, भगवान के भक्त हैं। वही। उनको खुशी होती है भगवान के चरणों में रह करके। शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, शेरोली माता हो, ये भगवान के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं सबके सब। तो सेंटर में कृष्णा ही है प्रभु जी। हाँ, तो बस बस। और हम रोज उनकी सेवा करते हैं, तो कोई करो। अपराध नहीं होता ना हमारा? हाँ, कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। अभी मानो भगवान अपने भक्तों के साथ हैं, बस। दैट्स इट। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट प्रश्न ब्रज तारिणी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं कराची से हूँ पर अभी भारत में रह रही हूँ। पर प्रभु जी, यहाँ की जो मंदिर है ना, बहुत बड़े बड़े हैं। मैं 1 साल हो गया यहाँ आई हूँ, हम्म। तो मुझे वो भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि मंदिरों में सिर्फ भीड़ भड़क्का ही आता है। तो कहाँ पर? ना, इंडिया में? भारत में? इस्कॉन जू में। प्रभु जी, इस्कॉन जू में इसको जुहू वैसा में? संग, जी जी, वैसा संग नहीं मिल पा रहा है प्रभु जी। अभी भी हम लोग मंदिर आए तो सिर्फ भीड़ है, भीड़। अब हमें पता ही नहीं चलता क्लासेस कहाँ चल रही है, कहाँ हम लोग अटेंड करें, भक्तों का संग कैसे करें, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है प्रभु जी। अब कराची में कैसा है कि छोटे से सेंटर है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग एक दूसरे को हाँ। सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे मुझे ना भक्ति का ज्यादा मतलब ज्यादा पे थे। अभी हम भारत आके पूरा ऐसा लग रहा है गिर गए हैं नीचे। नहीं तो नहीं, क्या करें प्रभु जी? अरे जुहू टेम्पल ना बहुत बड़ा है, तो जी इसलिए संग कहाँ हो रहा था कहीं पता नहीं लगता। जी जी पर आप चौपाटी और मीरा रोड जाके भी देखो आप। जी इसको प्रभु जी, हम चौपाटी। मीरा रोड में भी गए हैं, मीरा रोड में भी गए हैं, पर या प्रभु जी चौपाटी हम भी हो क्या हो? चौपाटी इज वेरी गुड जो टेम्पल। प्रभु जी हम आपसे मिले भी हैं। आप 3-4 महीने पहले आए थे, या एक सेमिनार हुआ था, तभी बहुत भीड़ था, आपसे बात भी नहीं हो पाई थी प्रभु जी। तो वहां से आपने चौपाटी जाओ, राधा गोपीनाथ टेम्पल। दैट इज A1 इन टर्म्स ऑफ शिक्षा। पर वेरी गुड। प्रभु जी वहां पे भी सारे लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं, तो इंग्लिश मेरा इतना अच्छा नहीं है नहीं, तो नहीं, समझ ही हिंदी नहीं में होते आता है। हैं। हिंदी में बहुत कम होते हैं प्रभु जी। कम से कम भागवतम क्लास में तो आओ, भागवतम क्लास होती है जुहू में, उसमें तो आओ। जी 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 प्रभु जी। तो आप ये पर मान इतना लो हर भीड़ संडे। भड़का है प्रभु जी, समझ ही नहीं आती है कैसे भक्तों का अरे संग भीड़ प्राप्त धक्के में करें आपको ठीक किसी से। किसी के लिए खेलनी है, पोशंबा भाई पोशंबा खेलना है। आप आओ, मॉर्निंग भागवतम क्लास अटेंड करो। ठीक है ना? गुरु पूजा और भागवतम क्लास शुरू करो। आप हर संडे आपको आना है मंगल आरती के लिए, इस्कॉन जुहू में। ठीक है कौंजू जी। में हर संडे आना है हाँ, मंगला हर आरती संडे पे? मंगल तो वहां आरती पे प्रभु जी हम करना लोगों का है, गुरु भक्तों पूजा का भागवतम संग क्लास। प्राप्त हो पाएगा? मॉर्निंग में बिल्कुल होगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके। थैंक यू निकुंज। प्रभु जी। यस, निकुंजला माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, आपकी हरे हमेशा कृष्ण। फर्स्ट क्लास रही। प्रभु, मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रभु यहाँ पर जिस तरह हमारे स्कॉन के साथ भक्त समाज बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान कराची में ना, तो भक्त समाज बहुत ज्यादा है। तो वो स्कॉन के ऊपर लाजमी मतलब उंगली उठाते हैं, हमारी जीबीसी पर उठाते हैं, ये वो कौन है स्कॉन ये। तो प्रभु, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम, जिससे आपने एक प्रभु ने पूछा, आपने इतना अच्छे से उनको गाइड किया, तो हम हमारे अंदर क्षमता नहीं, हमें इतना बुरा भी लगता है। हम अलग भी नहीं हो सकते क्योंकि बस समाज वाला और हमारा थोड़ा सेंटर साथ ही है हाँ तकरीबन। तो क्या करें प्रभु हम? माता जी, बस जो कोई निंदा कर रहा हो ना, चाहे वो कहीं से भी हो,
चाहे इस्कॉन में या इस्कॉन के बाहर कहीं पे भी हो, जो निंदा चुगली कर रहा हो ना किसी की, उसका संग मत करो। जहां कोई कृष्णा गुणगान कर रहा हो ना, चाहे भक्त समाज में हो या इस्कॉन में हो, उनका संग करो। दैट्स इट। तो उनसे दूर ही रहें, ज्यादा हाँ, बेहतर जो ऑप्शन। निंदा कर रहा हो उससे दूर रहो। किसी भी समाज, मान लो कोई भक्त समाज ही है, उसमें कोई कृष्ण गुणगान कर रहा है, सुन लो। चुगली कर रहा है, निकल लो। सही। प्रभु हम नहीं करते, वो बहुत, हम भक्त समाज का भी नहीं अपमान करते, अरे वो अपमान बहुत करना ज्यादा। है ना, अपमान सुनना है किसी का, तो अपमान करो और निकल जाओ। कहते हैं मेरे को एक्चुअली वो एक सेवा याद आ गई, मैं निकल रही हूँ। फिर निकल जाओ वहां से। ओके चलो प्रभु, आइंदा यही बात याद रखेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी। ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे श्रीमद् हरे कृष्णा। भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे आप सभी कृष्णा भक्तों जय। की प्रभु जी। हरे जय। कृष्णा हिज प्रभु जी, ग्रेस हमारे अमोघ लीला प्रभु। हरे कृष्णा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा क्लास दिया आज भागवत का, इसीलिए आपका खूब खूब आभार। आप बहुत दिनों के बाद आए। हम्म। हम बहुत पहले आपको दिल्ली में मिले थे। हम जी। वृंदावन जाके आए, अभी हम बड़ौदा में है, गुजरात में ही है। अच्छा। ओ। लेकिन दिस ईयर आपका दर्शन नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा सा हमें हो रहा है कि जी जी। मैं सोचता था कि आप वृंदावन में आएंगे कार्तिक के दिनों में, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आया, लेकिन साहब फिर निकल ही लिया। अच्छा। या। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर हरे गिविंग अस सच एन कृष्णा। एक्सेलेंट क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि भक्तों की जय, श्री जय प्रभुपाद की की जय। जय। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद।